गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनः शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनामभित्र्यवतु गणेशाय नमः सरस्वत्यै नमः श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ प्रातरग्निं प्रातरिन्द्रगुं हवामहे प्रातर्मित्रावरुणा प्रातरश्विना प्रातर्भगं पूषणं ब्रह्मणस्पतिं प्रातः सोममुत रुद्रगं हुवेम प्रातर्जितं भगमुग्रगं हुवेम वयं पुत्रमदितेर्यो विधर्ता आद्रश्चिद्यं मन्यमानस्तुरश्चिद्राजा चिद्यं भगं भक्षीत्याह भगप्रणेतर्भगसत्यराधो भगेमान् धियमुदवददन्नः भगप्रणो जनयगोभिरश्वैर्भगप्रणृभिर्नृवन्तः स्याम उतेदानीं भगवन्तः स्यामोत प्रपित्व उत मध्ये अह्नाम् उतोदितामघवन् सूर्यस्य वयं देवानागं सुमतौ स्याम भग एव भगवागम् अस्तु देवास्तेन वयं भगवन्तः स्याम तन्त्वा भग सर्व इज्जो हविभिसनो भगपुर एता भवेह समध्वरायोषसो नमन्तदधिक्राहे वशुचये पदाय अर्वाचीनं वसुविदं भगन्नो रथमिवाश्वावाजिन आवहन्तु अश्वावतीर्गोमतीर्न उषासो वीरवती सरमुच्छन्तु भद्राः घृतं दुहाना विश्वतः प्रकीना यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः यो माग्ने भागिनगं सन्तमथा भागं चिकीर्षति अभागमग्ने तं कुरु मामग्ने भागिनं कुरु ईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः Om Shri Sai Ram. I offer my most humble salutations at the divine lotus feet of our most beloved master, Bhagwan Shri Satya Sai Baba. Today is a very auspicious day of Guru Purnima and therefore definitely an auspicious time to embark upon a new aspect of sadhana which the Sri Satya Sai Seva Organization India is proposing to commence on this auspicious day. Dear brothers and sisters, in our ancient times, India has been very, very used to performing the Satyanarayan Katha in every household, whether it is the north, east, west or south of India. This year, we are proposing that we had the great advantage of being contemporaries of the great avatar of Bhagwan Shri Satya Sai Baba. Bhagwan always said, I am Satya. Bhagwan always said, I am Satyanarayana. And I am the same Vishnu born again.
I am the same Shiva born again. I am the same Brahma born again. In fact, I am beyond all forms. I am the ultimate power that rules the entire cosmos and all the worlds. When we've had the advantage of such an avatar coming us, such a Paripurna avatar amongst us, we've enjoyed his sanidhya, we've enjoyed his proximity, we've enjoyed his darshan, sparshan and sambhashan. Therefore, we thought it is apt that the Sri Satya Sai Satyanarayan Katha, which was performed so beautifully in the divine precincts of Prasanthi Nilayam in the Sai Kulwant Hall many years ago, during his immediate presence, be now a part of our sadhana of day-to-day life. I invite every individual and every family that has this faith and reverence to Bhagwan Shri Sathya Sai Baba to try and embark upon this Sri Satya Sai Satyanarayan Katha. We have made a detailed video of the entire process of how it should be, very similar to the Satyanarayan Katha that we've been used to doing, and also we have printed a booklet for each family to follow. It is our wish that on this auspicious day of Guru Purnima, every family embarks upon this Sri Satya Sai Satyanarayan Katha. Many advantages, brothers and sisters, for this great event. People may say that this is a ritual, but this ritual has to be understood in the right sense. Bhagwan used to always say that I am the body, I am the form, but I am not the ultimate. I am only a reflection of the ultimate divinity. This body has taken form to show to the world that by respecting and loving and adhering and revering this body, maybe you will be able to experience him, the real one which is inside our hearts. But Dvaita, duality, is the starting point. The ultimate Advaita is the goal that we reach, but it has to begin for all commoners like us, for all ordinary people like us. It must begin with the karma kanda or the puja part and ultimately lead to the ultimate inner experience of the presence of God within each one of us. This Satyanarayan Katha, when performed, may appear to be ritualistic, but each ritual, when transgressed, when transferred internally through the mind into the heart, then one day, even while closing the eyes, the entire Katha can be said to the Divine Master who is seated on the throne of our own hearts. Therefore, let's approach this from that perspective. Let us see that this ritual ultimately gets internalized into our own being, where we have him seated in our heart on the throne, very much resplendent with all the love and affection, where we efface our existence and he alone remains in our heart. This Katha is an instrument to achieve this ultimate goal. Dear brothers and sisters, the Sri Satya Sai Satyanarayan Katha is being rolled out this Guru Purnima for every family, every individual throughout the length and breadth of this country, but also to those abroad, anywhere, who would wish to embark upon this. Bhagwan was ultimately and extremely happy when we had this Katha performed and the puja performed in the Sai Kulwant Hall. I remember he was beaming with happiness with so many couples sitting in the Sai Kulwant Hall and performing this puja. It is my humble prayer at his divine lotus feet that he blesses and grants grace upon every individual or every family that embarks upon Sri Satya Sai Satyanarayan Katha on a regular basis. The periodicity is left to us. It is our wish and our convenience. Whenever we do, let us do it with faith. Let us do it to that God who is sitting inside our heart. The process may be external, but the impact is internal. And therefore, when performed with this perspective, this objective, I am sure Bhagwan will bless all of us and there will be protection, happiness, bliss, and the ability to accept life, both happiness and sorrow, with peace. This is the ultimate goal of sadhana, which will be achieved by this Katha. It will be a great tradition to set in every family for the new generation to come, who will recognize and understand the inner significance of this Sri Satya Sai Satyanarayan Katha. Imagine we were contemporaries of the avatar of the time, of the age, and remembering him through a Katha, through a process of puja every day, would definitely earn his grace and his bliss upon us, not only upon us, but upon our families, both external, internal,
the families that have gone by, the families which are yet to come. Generations have gone by and generations to come and the present. All will be blessed by our beloved Master, Bhagwan Sri Satya Sai Baba. So, I'm sure we'll all embark upon this with great faith and with reverence and a prayer to Bhagwan that Bhagwan, please help us to succeed in this sadhana and bless us with your grace. Jai Sai Ram. ओम श्री साई राम। आज बहुत अच्छा शुभ दिवस है। हम सब यहाँ पे एकत्रित हुए हैं श्री सत्य साई सत्यनारायण व्रत कथा पूजा का प्रारंभ करते हैं। सभी भक्तगण को पूजा सामग्री सब कुछ आपके जगह पे दी गई है। सबसे प्रथम दीप प्रज्वलित कर लीजिए। और वो माचिस सभी को दे रहे हैं, तो दीप प्रज्वलित कर लीजिए। पूरे श्रद्धा पूरे भक्ति के साथ स्वामी को नमन करते हुए दीप को प्रज्वलित कर लीजिए। आगे आगे जैसे है बातें बताई जाएंगी। ऑल आर रिक्वेस्टेड टू लाइट द लैम्प। ओम शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव प्रतिप्रभो तेऽङ्घ्रियुगं स्मरामि। हरिः ओम्। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थाङ्गतोऽपि वा यस्मरेत् सत्यसायीशं सभाभ्यायन्तरं शुचिः। सबसे पहले एक पुष्प ले लीजिए। पुष्प से खुद के ऊपर जल प्रोक्षण कर लीजिए। प्लीज स्प्रिंकल वाटर ऑन योर सेल्फ। ओम श्री सत्य साई परब्रह्मणे नमः। खुद के अंदर जो ईश्वर बसे हैं उनको ये नमन है। आगे आचमन करेंगे। ये जो मंत्र बताने वाले हैं वो दोहराते हुए जल प्राशन करना है। जल को आपको एक थोड़ा थोड़ा पीना है। आप पहले मंत्र बोलिए और फिर ये कीजिए। ओम केशवाय स्वाहा, ओम नारायणाय स्वाहा, ओम माधवाय स्वाहा। अब अगला मंत्र दोहराते हुए सामने थाली है उसमें जल प्रवाहित कर दीजिए अपने हाथ से। ओम गोविंदाय नमः। प्लीज पोर द वाटर इन फ्रंट ऑफ यू। अभी पुष्प की थाली बिल्कुल स्वल्प मात्रा में, बिल्कुल कम मात्रा में, थोड़ी पंखुड़ियाँ भी आप अर्पित कर सकते हैं। आगे जाके अष्टोत्तर अर्चना है और भी अंग अर्चना है, भगवान का गणपति अर्चना है, तो कम मात्रा में उपयोग कीजिए। एक एक मंत्र पर हर नमःकार पे आप पुष्प अर्पित कर दीजिए। प्लीज ऑफर फ्लावर्स एज ईच मंत्र इज सेड। यू कैन ऑल्सो रिपीट द मंत्र। आप मंत्र भी दोहरा सकते हैं। ओम विष्णवे नमः, ओम मधुसूदनाय नमः, ओम त्रिविक्रमाय नमः, ओम वामनाय नमः, ओम श्रीधराय नमः, ओम हृषिकेशाय नमः, ओम पद्मनाभाय नमः, ओम दामोदराय नमः, ओम संकर्षणाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम प्रद्युम्नाय नमः, ओम अनिरुद्धाय नमः, ओम पुरुषोत्तमाय नमः, ओम अधोक्षजाय नमः, ओम नारसिंहाय नमः, ओम अच्युताय नमः, ओम जनार्दनाय नमः, ओम उपेन्द्राय नमः, ओम हरये नमः, ओम श्रीकृष्णाय नमः। आगमार्थं तु देवानां गमनार्थं तु रक्षसां कुर्वे घण्टारवं तत्र देवताह्वानलाञ्छनम् अपक्रामं तु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशं सर्वेषाम् अविरोधेन ब्रह्मकर्म समारभे। थोड़ी सी अक्षता अपने हाथ में ले लीजिए। फिर जो प्राणायाम जानते हैं प्राणायाम कर सकते हैं, नहीं तो जस्ट हाथ अपने नाक पे रख लीजिए। इफ प्राणायाम इज नोन वन कैन डू द प्राणायाम, अदरवाइज टच योर हैंड्स टू द नोज और मंत्र दोहराइए। ओम भूः, ओम भुवः, ओम सुवः, ओम महः, ओम जनः, ओम तपः,
ओम सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम आपः ज्योतिरसः अमृतं ब्रह्मा भूर्भुवस्वरोम। अपने कान पे स्पर्श कर दीजिए हाथ को। प्लीज टच योर हैंड टू योर ईयर। और थोड़ा अक्षता और पुष्प अपने हाथ में ले लीजिए। हाथ को इस तरह से रख लीजिए, बायां हाथ नीचे की तरफ, दाहिना हाथ ऊपर, और ये बाएं जांघ पे अपना रख लीजिए। प्लीज टेक द अक्षता एंड फ्लावर्स इन योर लेफ्ट हैंड, कीप राइट हैंड ऑन टॉप एंड प्लेस इट ऑन योर राइट लैप। संकल्प है, दोहराइए, प्लीज रिपीट। ममोपात्त ममोपात्त समस्त दुरित क्षयद्वारा श्री परमेश्वर श्रीमन्नारायण श्री सत्यसाईश्वर प्रीत्यर्थम शुभे शोभने मुहूर्ते अद्य ब्रह्मणः द्वितीय परार्धे श्वेतवराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे प्रथमे पादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे शकाब्दे अस्मिन् वर्तमाने व्यावहारिके श्री षष्ट्याः संवत्सराणां मध्ये श्री प्लवनाम संवत्सरे दक्षिणायने ग्रीष्म ऋतौ आषाढ़मासे कृष्णपक्षे प्रथमायां शुभतिथौ वासरः स्थिरवासर युक्तायां श्रवणनक्षत्र युक्तायां शुभयोग शुभकरण एवं गुण विशेषण विशिष्टायां अस्यां वर्तमानायां प्रथमायां शुभतिथौ। अपना नाम बोल दीजिए। अपना नाम बता दिया। नामधेयस्य मम सहकुटुम्बानां क्षेम स्थैर्य वीर्य विजय अभय आयुः आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थं धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध फल पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थं श्री सत्यसाई बाबा अनुग्रह प्रसाद सिद्ध्यर्थं ध्यान आवाहन आदि षोडश उपचार सहित श्री सत्यसाई सत्यनारायण कथाव्रत पूजाम करिष्ये। जो अपने हाथ में पुष्प और अक्षता है उसको दाहिनी तरफ आप किनारे रख दीजिए। प्लीज पुट दी अक्षता एंड फ्लावर्स इन योर हैंड ऑन योर साइड। ये संकल्प के बारे में विशेष बात, ये गुरु पूर्णिमा के दिन का संकल्प है, क्योंकि यहाँ पे रिकॉर्डिंग जो हो रहा है वो गुरु पूर्णिमा के प्रति हो रहा है, गुरु पूर्णिमा के लिए हो रहा है। परंतु भक्तगण अगर अपने घर में भी व्रत कथा करना चाहते हैं तो इतना पंचांग देखकर तिथि वार सब कुछ इसमें समाया हुआ है। तो 2021 गुरु पूर्णिमा के लिए ये मंत्र है, परंतु हमेशा घर पे करना है। उसके लिए सिंपल एक संकल्प भी है, वो भी हम एक बार कर देते हैं। दोबारा थोड़ा अक्षत और पुष्प अपने हाथ में ले लीजिए। The particular sankalpa which we have done today is for Guru Purnima day of 2021. It is not valid for other days. However, if the bhaktas or the devotees want to do the puja in their home, then it is not sometimes possible to consult Panchang each time. So for that, simplified version of the sankalpa is also there. We will repeat that also now. Please take akshata and flowers in your hand. Repeat after me. Please dohraiye. Mamopatta समस्त दुरित क्षयद्वारा श्री परमेश्वर
श्रीमन्नारायण श्री सत्यसाईश्वर प्रीत्यर्थम अस्मिन् पुण्यक्षेत्रे अस्मिन् वर्तमानायां शुभतिथौ सर्वमंगल प्राप्त्यर्थम सर्वमंगल सिद्ध्यर्थम श्री सत्यसाई सत्यनारायण व्रत कथा पूजां करिष्ये। अपने किनारे वो अक्षता और पुष्प रख दीजिए और अपने हाथ पे एक बूंद पानी डालकर जल से हाथ साफ कर दीजिए। प्लीज प्लेस द अक्षता एंड फ्लावर्स ऑन द साइड एंड यू कैन जस्ट टेक ए ड्रॉप ऑफ वाटर एंड वॉश योर हैंड। अभी कलश का आराधना करेंगे। अपने दाहिने हाथ से कलश को स्पर्श कर लीजिए। प्लीज टच द कलशा विथ योर राइट हैंड। कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्रसमाश्रुतः मूले तत्र स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणा स्मृताः कुक्षौ तु सागरा सर्वे सप्तद्वीपा वसुन्धरा ऋग्वेदोऽथ यजुर्वेदः सामवेदो ह्यथर्वणः अङ्गैश्च सहिताः सर्वे कलशाम्बुसमाश्रुताः आयान्तु देवपूजार्थं दुरितक्षयकारकाः सर्वे समुद्रा सरितास्तीर्थानि जलदा नदाः गङ्गे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु। कलश को एक पुष्प अर्पित कर दीजिए। कलश के अंदर आवाहन किया है कि सारे जो देवी देवता हैं उनका आवाहन किया है और सभी कुछ वेदों का सभी चीज़ों का यहाँ पे समावेश है। The offering to the kalasha initially to invoke the presence of God in the kalasha. The water in the kalasha becomes energized and it will be then used for prokshana. साई राम। कलश को एक पुष्प समर्पित कर दीजिए। उसके बाद आपो वा इदगं सर्वं विश्वा भूतान्यापः प्राणा वा आपः पशव आपोन्नमापो मृतमापः सम्राडापो विराडापः स्वराडापश्छन्दागस्यापो ज्योतिगुष्यापो यजुगुष्यापः सत्यमापः सर्वा देवता आपो भूर्भुवस्सुवराप ओम। अपने उदरणी में एक पुष्प को भिगोकर सभी पूजा स्थान और पूजा सामग्री के ऊपर एक बार प्रोक्षण कर दीजिए। शुद्धिकरण क्रिया होती है तो सभी अभी चीज़ें शुद्ध है। भगवान को आवाहित कर दिया है, मंगलमय वातावरण हो गया है। साई राम प्लीज टेक द फ्लावर एंड स्प्रिंकल सम वाटर ऑन ऑल द पूजा मटेरियल्स। दिस इज फॉर प्यूरिफिकेशन, इट्स ए प्यूरिफिकेटरी रिचुअल एंड द एनर्जी ऑफ गॉड विच हैज डिसेंडेड टू कलशा इज नाउ प्यूरिफाइंग द एंटायर प्लेस ऑफ द पूजा। साई राम। गणपति की एक छोटी मूर्ति हल्दी की बनाई हुई आपके सामने है तो उसको नमन कर लीजिए। अपना हाथ जोड़ के प्रार्थना कर लीजिए। प्लीज जॉइन योर हैंड्स फॉर प्रेयर। ओम गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पतान शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्। ओम श्री महागणपतये नमः। गणपति जी मूर्ति को नमस्कार कर दीजिए। मन से उनका आवाहन कर लीजिए। Invoke the presence of Lord Ganesha. Please offer your prostrations to him. दोहराइए, please repeat. अस्मिन् हरिद्रा बिंबे सुमुखाय महागणपतये नमः। मूर्ति में गणपति जी को आवाहित कर दिया। उनके रूप से मूर्ति को हम देख रहे हैं। अभी षोडश उपचार पूजा विधि है गणपति जी के लिए। दोहराते जाइए और मन ही मन प्रार्थना भी कर लीजिए। ओम श्री महागणपतये नमः। दोहरा लीजिए, प्लीज रिपीट। श्री महागणपतिं ध्यायामि, श्री महागणपतिं आवाहयामि। थोड़ा सा अक्षता अपने हाथ में ले लीजिए। अक्षता गणपति जी को समर्पित कर दीजिए। प्लीज टेक अक्षता एंड ऑफर टू लॉर्ड गणेशा। आसनार्थम अक्षतान समर्पयामि। जल 3 बार अर्पित कर दीजिए सामने ही मंत्र के साथ। पादयोः पाद्यम समर्पयामि, समर्पित कर दीजिए। हस्तयोः अर्घ्यम समर्पयामि। मुखे आचमनीयम समर्पयामि। एक पुष्प लेकर उससे गणपति जी पर प्रोक्षण कर दीजिए। प्लीज स्प्रिंकल वाटर ऑन लॉर्ड गणपति यूजिंग ए फ्लावर। शुद्धोदकम, रिपीट कीजिए, प्लीज दोहराइए। शुद्धोदकम स्नानम समर्पयामि।
एक बार जल समर्पित कर दीजिए सामने ही। स्नान अनंतरम आचमनीयम समर्पयामि। हाथ में अक्षता लेके समर्पित कर दीजिए, 2 बार करना है। एक बार ये पहला मंत्र, फर्स्ट मंत्र फॉर ऑफरिंग अक्षता। वस्त्र उत्तरीय आभरणार्थम अक्षतान समर्पयामि। उपवीतार्थम अक्षतान समर्पयामि। चंदन और कुमकुम एक थाली में दिया। जो यज्ञोपवीत वहाँ पे रखा है उपवीत, वो भगवान के मेन पूजा के लिए यहाँ पे अक्षता स्वरूप से हमने गणपति जी को अर्पित कर दिया। ठीक है, साई राम। चंदन और कुमकुम का अलंकार कर दीजिए गणपति जी को, दोहराते रहिए और साथ में कर्म भी करते रहिए। प्लीज अप्लाई चंदन एंड कुमकुम टू लॉर्ड गणपति वाइल रिपीटिंग द मंत्र। दिव्य परिमल गंधान धारयामि। गंधस्य उपरि हरिद्रा कुंकुमम समर्पयामि। टीका लगाने के बाद अक्षता समर्पित कर दीजिए। अक्षतान समर्पयामि। प्लीज ऑफर द अक्षता। गणपति जी के मूर्ति को अर्पित किए गए पुष्पमाला को स्पर्श कर लीजिए। गणपति जी के प्रति पुष्पमाला अगर नहीं है तो एक पुष्प अर्पित कर दीजिए और मंत्र बता दीजिए। पुष्पमालाम समर्पयामि। फिर पुष्प के थाली में से धीरे धीरे पुष्प समर्पित कीजिए, परंतु पुष्प के मात्रा का ध्यान रहे। पंखुड़िया भी आप समर्पित कर सकते हैं। यू कैन ऑफर फ्लावर्स और पेटल्स टू लॉर्ड गणपति विथ वाइल चैंटिंग दी नेम्स। पुष्पैः पूजयामि। ओम सुमुखाय नमः। ओम एकदंताय नमः। ओम कपिलाय नमः। ओम गजकर्णकाय नमः। ओम लंबोदराय नमः। ओम विकटाय नमः। ओम विघ्नराजाय नमः। ओम विनायकाय नमः। ओम धूमकेतवे नमः। ओम गणाध्यक्षाय नमः। ओम भालचंद्राय नमः। ओम गजाननाय नमः। ओम वक्रतुंडाय नमः। ओम शूर्पकर्णकाय नमः। ओम हेरंबाय नमः। ओम स्कंदपूर्वजाय नमः। ओम श्री सिद्धिविनायकाय नमः। ओम श्री महागणपतये नमः। दोहरा दीजिए। नानाविध परिमल पत्रपुष्पाणि समर्पयामि। धूप गणपति जी को अगरबत्ती दिखा दीजिए। धूपम आघ्रापयामि। उसके बाद जो तेल का दीप है उसको समर्पित कर दीजिए, उससे आरती दिखा दीजिए। प्लीज ऑफर दी लैम्प टू लॉर्ड गणपति। दीपम संदर्शयामि। धूपदीप अनंतरम आचमनीयम समर्पयामि। थोड़ा सा जल समर्पित कर दीजिए। प्लीज ऑफर लिटिल बिट ऑफ वाटर। अस्मिन् हरिद्राबिंबे श्री महागणपतये नमः। एक केले का फल गणपति जी के सामने समर्पित कर दीजिए और उसी को नैवेद्य स्वरूप ही उनको समर्पित कर दीजिए। जल से उसके ऊपर थोड़ा सा प्रोक्षण कर लीजिए। प्लीज स्प्रिंकल वाटर ऑन द बनाना विच इज केप्ट फॉर द प्रसाद और द नैवेद्य फॉर लॉर्ड गणपति। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जल से प्रदक्षिण दिशा से परिसेचन कर दीजिए। प्लीज circumambulate the water around the fruit, offering the water to Lord Ganapati. Deva savitah prasuva satyam tvartena rutam va satyena parishinchami amrita upastaranamasi. नैवेद्य भोग दे दीजिए भगवान को। प्लीज ऑफर दी नैवेद्य टू लॉर्ड गणपति। प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा। महानैवेद्यम निवेदयामि। थोड़ा सा जल समर्पित कर दीजिए। प्लीज ऑफर लिटिल वाटर। आचमनीयम समर्पयामि। जो पान और सुपारी रखा है उसके ऊपर थोड़ा जल प्रोक्षण कर दीजिए, उसको स्पर्श कर लीजिए। तांबूलम समर्पयामि। उसके बाद थोड़ा सा जल अर्पित कर दीजिए। आचमनीयम समर्पयामि। प्लीज ऑफर वाटर। अभी
कर्पूर आरती का दीप सभी को दिया है क्या? ठीक है, तो जो तेल दीप है उसी से आराधना कर देते हैं। तेल दीप से आराधना कर दीजिए। ओम गणपतये नमः, एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। दीपं संदर्शयामि, नीराजनार्थम दीपम संदर्शयामि। उसको आशीर्वाद ले लीजिए दीप का। रक्षां धारयामि, हाथ में थोड़े से पुष्प ले लीजिए। प्लीज टेक सम फ्लावर्स इन योर हैंड। नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते स्तुलंबोदराय कदंताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमः। समर्पित कर दीजिए। वेदोक्त मंत्र पुष्पाणि समर्पयामि। प्लीज ऑफर द फ्लावर्स टू लॉर्ड गणपति। प्लीज जॉइन योर हैंड्स इन प्रेयर। हाथ जोड़ के नमस्कार कर लीजिए। अस्मिन् हरिद्रा बिंबे श्री महागणपतये नमः। अनंत कोटि प्रदक्षिण नमस्कारान् समर्पयामि। नमस्कार कर दीजिए, भगवान गणपति जी को नमस्कार कर दीजिए। अंत में प्रदक्षिण नमस्कार करेंगे। अभी मन ही मन में अनंत कोटि प्रदक्षिण वैसे भी नहीं कर सकते, तो अनंत कोटि प्रदक्षिण का नमस्कार मनस्वरूपी भगवान को अर्पित कर दीजिए। जय साई राम। आगे चलते हैं। भगवान की प्राण प्रतिष्ठा भगवान को आवाहित करने के लिए हाथ में पुष्प और अक्षता थोड़ा ले लीजिए। ओम गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिः सीदसादनं हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनामवित्र्यवतु। विष्णोरराटमसि विष्णोः पृष्ठमसि विष्णोष्णप्त्रे स्थो विष्णोस्यूरसि विष्णोर्ध्रुवमसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा गन्धद्वारान्दुरादर्शा नित्यपुष्टाङ्करीषिणीम् ईश्वरीगं सर्वभूतानां तामिहोपह्वये श्रियं। गौरीमिमाय सलिलानितक्षत्येकपदी द्विपदी सा चतुष्पदी अष्टापदी नवपदी बभूवुषी सहस्राक्षरा परमे व्योमन्। तामग्निवर्णां तपसा ज्वलन्तीं वैरोचनीं कर्मफलेषु जुष्टां दुर्गां देवीं शरणमहं प्रपद्ये सुतरसितरसे नमः। ओम साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। प्लीज रिपीट, दोहराइए। सर्वदेवतातीता सर्वदेवता अतीत स्वरूप भगवान श्री सत्यसाई बाबा प्राण प्रतिष्ठापन मुहूर्तः सुमुहूर्तोस्तु तथास्तु। भगवान का पूजा विधि। हाथ में पुष्प और अक्षता ले लीजिए। स्वामिन् सर्वजगन्नाथ यावत् पूजावसानकं तावत् त्वं प्रीतिभावेन चित्रेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु। आगच्छागच्छ भगवान् पर्तिनाथ परात्पर इमां मया कृतां पूजां स्वीकुरुष्व दयानिधे। दोहराइए, प्लीज रिपीट। आवाहितो भव, स्थापितो भव, सुप्रसीदो भव, सुप्रसन्नो भव, वरदो भव। पुष्प और अक्षता भगवान के चरण पर चित्र के सामने समर्पित कर दीजिए। जो मंत्र स्वरूप था अस्मिन चित्रे अस्मिन सन्निधिम कुरु, चित्र में उनको आवाहित कर लिया है। भगवान आ गए हैं, आपके सामने बैठे हैं। बिल्कुल भगवान आपके सामने हैं। उसी तरीके से हम पूजा को आगे करेंगे, पूजा विधि को आगे करेंगे। The mantra says that Chitre asmin sannidhim kuru, which means we have invited Bhagwan and he is now present in the form of photograph in front of us, and we will proceed the puja further. Dhyanam
ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमनमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं दक्षिणामूर्तिमीळे ध्यायेत् श्रीसत्यसायीशं दिव्यमङ्गलविग्रहं पीताम्बरधरं देवं दिव्यतेजो विराजितं प्रशान्तिनिलये भव्ये दिव्यसिंहासने स्थितं भक्तहृन्मन्दिरावासं सर्वव्यापिनमीश्वरं वरदारुजनमन्दारं मन्दस्मितमुखाम्बुजं शरणागतसन्त्राणं दीक्षाकङ्कणधारिणं सर्वतः पाणिपादाब्जं सर्वतोक्षिशिरोमुखं सर्वभूतान्तरात्मानं सत्यसायीश्वरं भजे वरदाभयहस्तं च करुणावरुणालयं नमामि सत्यसायीशं नतभक्तार्तिभञ्जनम्। भगवान को पुष्प और अक्षता समर्पित कर दीजिए, दोहराइए। प्लीज ऑफर अक्षता एंड फ्लावर्स टू भगवान एंड प्लीज रिपीट। सर्वदेवतातीता स्वरूप भगवान श्री सत्यसाई बाबा परब्रह्मणे नमः। ध्यायामि आवाहनम् आवाहयामि श्री सत्यसायीशं करुणाकरं साध्वीमतल्लीश्वराम्बा गर्भसंभवमीश्वरं सर्वदेवतातीता स्वरूप, दोहराइए प्लीज रिपीट। सर्वदेवतातीता स्वरूप भगवान श्री सत्यसाई बाबा परब्रह्मणे नमः। आवाहयामि, पुष्प और अक्षता समर्पित कर दीजिए। राजाधिराज राजेन्द्र पूजा पूजिताश्रितरक्षक रत्नसिंहासनं दिव्यं दास्यामि स्वीकुरु प्रभो। प्लीज ऑफर फ्लावर टू द लॉर्ड। पुष्प समर्पित कर दीजिए भगवान को। श्री सर्वदेवतातीता स्वरूप भगवान श्री सत्यसाई बाबा परब्रह्मणे नमः। नवरत्न सिंहासनं समर्पयामि। परिपूर्ण परानंद परब्रह्म परात्परा पाद्यं गृहाण भगवान पर्तीश परमेश्वर सर्वदेवतातीता, दोहराइए प्लीज रिपीट। सर्वदेवतातीता स्वरूप भगवान श्री सत्यसाई बाबा परब्रह्मणे नमः। पादयोः पाद्यं समर्पयामि। भगवान को थोड़ा जल समर्पित कर दीजिए। प्लीज ऑफर वाटर टू द लॉर्ड। नमः सत्याय शुद्धाय नित्याय ज्ञानरूपिणे अर्घ्यं गृहाण भगवान गन्धपुष्पाक्षतैर्युतं, दोहराइए प्लीज रिपीट। सर्वदेवतातीता स्वरूप भगवान श्री सत्यसाई बाबा परब्रह्मणे नमः। हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि। जल समर्पित कर दीजिए भगवान को। प्लीज ऑफर वाटर टू द लॉर्ड। सर्वाराध्य नमस्तुभ्यं संसारार्णवतारक साईनाथ जलं दिव्यं सम्यग् आचम्यतं प्रभो। सर्वदेवतातीता स्वरूप भगवान श्री सत्यसाई बाबा परब्रह्मणे नमः। मुखे आचमनीयं समर्पयामि। जल समर्पित कर दीजिए। प्लीज ऑफर वाटर। प्रशान्तिनिलयावास पुट्टपर्तिपुरीश्वर पंचामृत स्नानमिदं गृहाण परमेश्वर। आपके बगल में एक छोटे से बाउल में, मतलब क्या बोलते हैं, वाटी में, मराठी आ गया, उसमें पंचामृत रखा है। सफ़ेद रंग का ये पदार्थ है। इसमें दूध, दही, घी, शक्कर और मध का समावेश है। घर में भी बना सकते हैं, घर में भी अर्पित कर सकते हैं। अभी पुरुष सूक्त के साथ इस पर अर्चना होगी। आपको प्रोक्षण करना है भगवान के सामने, चरणों पे उनके। और पुरुष सूक्त जो जानते हैं साथ में बोल भी सकते हैं। और पुरुष सूक्त बोलते बोलते प्रोक्षण करते रहना है। ओम श्री साई राम। नाउ पंचामृत स्नानम विल बी देर इज ए वाइट there is a bowl of white liquid that is called panchamrita. It consists of 5 elements: milk, curds, ghee, honey and sugar. It can be made and offered at home also. And along with Purusha Suktam, this offering will be done with a flower. One can just touch on the panchamrita and sprinkle at the feet of the Lord while chanting Purusha Suktam, if you know. Otherwise just with prayers. Jai Sai Ram.
ॐ तच्छंयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं शन्नो अस्तु द्विपदे शञ्चतुष्पदे ॐ शान्तिः 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 सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् स भूमिं विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठद्दशाङ्गुलं पुरुष एवेदकं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यम् उतामृतत्वस्येषानः यदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमा अथो ज्यायाकश्च पूरुषः पादोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादूर्ध उदयित्पुरुषः पादोऽस्येहा भवात् पुनः ततो विश्वं विक्रामत् शासनानशने अभि तस्माद् विराडजायत विराजो अधिपूरुषः स जातो अत्यरिच्यत पश्चाद्भूमिमथो पुरः यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत वसन्तो अस्यासीदाज्यं ग्रीष्म इध्मः शरद्धविः सप्तास्यासन् परिधयः त्रिसप्तसमिधः कृताः देवा यद्यज्ञं तन्वानाः अबध्नन् पुरुषं पशुं तं यज्ञं बर्हिषि प्रोक्षन् पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्या ऋषयश्च ये तस्माद्यज्ञात् सर्वहुतः संभृतं पृषदाद्यं पशुगस्ताकश्चक्रे वायव्यान् आरण्यान् ग्राम्याश्च ये तस्माद्यज्ञात् सर्वहुतः ऋचः सामानि जज्ञिरे छन्दागुंसि जज्ञिरे तस्मात् यजुस्तस्मादजायत तस्मादश्वा अजायन्त ये केचोभया ततः गावो हजज्ञिरे तस्मात् तस्माज्जाता अजावयः यत्पुरुषं व्यदधुः कतिधा व्यकल्पयन् मुखं किमस्य कौ बाहू कावूरुपादावुच्येते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः ऊरू तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्यागं शूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातः चक्षुः सूर्यो अजायत मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणाद्वायुरजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षं शीर्ष्णो द्यौः समवर्तत पद्भ्यां भूमिर्दिशश्रोत्रात् तथा लोकागम् अकल्पयन् वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसस्तु पारे सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरः नामानि कृत्वाभिवदन् यदास्ते धाता पुरस्ताद्यमुदा जहार शक्रः प्रविद्वान् प्रतिशश्चतस्रः तमेवं विद्वानमृत इह भवति नान्यः पन्था अयनाय विद्यते यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् ते हनाकं महिमानः सचन्ते यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ नमो नारायणाय अभ्यः सम्भूतः पृथिव्यैरसाच्च विश्वकर्मणः समवर्तताधि तस्य त्वष्टा विदधद्रूपमेति तत्पुरुषस्य विश्वमाजानमग्रे वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेवं विद्वानमृत इह भवति नान्यः पन्था विद्यते यनाय प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तः अजायमानो बहुधा विजायते तस्य धीराः परिजानन्ति योनिं मरीचीनां पदमिच्छन्ति वेधसः यो देवेभ्य आतपति यो देवानां पुरोहितः पूर्वो यो देवेभ्यो जातः नमो रुचाय ब्राह्मये रुचं ब्राह्मं जनयन्तः देवा अग्रे तदब्रुवन् यस्त्वैवं ब्राह्मणो विद्यात् तस्य देवा असन्वशे ह्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्यो अहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपम् अश्विनौ व्यात्तम् इष्टं मनिषाण अमुं मनिषाण सर्वं मनिषाण तच्छंयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं शन्नो अस्तु द्विपदे शञ्चतुष्पदे ॐ शान्तिः 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 सर्वदेवतातीता स्वरूप
भगवान् श्री सत्यसाई बाबा परब्रह्मणे नमः। पंचामृत स्नानं समर्पयामि। एक बार जल समर्पित कर दीजिए प्लीज, ऑफर वाटर वंस। आचमनीयं समर्पयामि। सुशीतलं सुप्रसन्नं समानीतमिदं जलं सत्यसाईश सर्वेश स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। सर्वदेवतातीता स्वरूप भगवान् श्री सत्यसाई बाबा परब्रह्मणे नमः। शुद्धोदकं स्नानं समर्पयामि। एक बार जल समर्पित कर दीजिए प्लीज, ऑफर वाटर। स्नान अनंतरम आचमनीयं समर्पयामि। एक बार जल समर्पित कर दीजिए प्लीज, ऑफर वाटर। जो कलश को एक वस्त्र आभूषण किया है उसको स्पर्श कर लीजिए। तप्त कांचन संकाशं पीतांबरमिदं प्रभो धारयातीव मृदुलं धर्म संस्थापकानघः। सर्वदेवतातीता स्वरूप भगवान् श्री सत्यसाई बाबा परब्रह्मणे नमः। वस्त्रं समर्पयामि। थोड़ा अक्षता ले लीजिए हाथ में प्लीज, टेक सम अक्षता इन योर हैंड। आभरणार्थे अक्षतान समर्पयामि। समर्पित कर दीजिए प्लीज, ऑफर द अक्षता। भगवान के समीप रखे यज्ञोपवीत यानी कि जनेऊ को दाहिने हाथ से स्पर्श कर लीजिए। प्लीज टच द सेक्रेड थ्रेड विच इज केप्ट नियर भगवान। सुवर्णतन्तुभिर्युक्तं ब्रह्मणा निर्मितं पुरा उपवीतं प्रदास्यामि गृहाण करुणाकरा। सर्वदेवतातीता स्वरूप भगवान् श्री सत्यसाई बाबा परब्रह्मणे नमः। यज्ञोपवीतं समर्पयामि। चंदन और कुमकुम का थाली सामने रख लीजिए और चंदन और कुमकुम भगवान को चढ़ा दीजिए, उनको टीका लगा दीजिए। प्लीज ऑफर द चंदन एंड कुमकुम टू द लॉर्ड। चंदनाकरु कर्पूर मृगनाभिसमन्वितं गंधं गृहाण सायेश सर्वसौख्यप्रदायका। सर्वदेवतातीता, कर्म करते करते दोहराइए प्लीज, रिपीट वाइल डूइंग। सर्वदेवतातीता स्वरूप भगवान् श्री सत्यसाई बाबा परब्रह्मणे नमः। दिव्य परिमल गंधान धारयामि। गंधस्य उपरि हरिद्रा कुंकुमं समर्पयामि। हरिद्रा संयुतान् रम्यान् अक्षयानंददायकान् अक्षतान् संगृहाणेश रक्ष मां भक्तवत्सला। भगवान को थोड़ा अक्षता समर्पित कर दीजिए प्लीज, ऑफर अक्षता टू द लॉर्ड। सर्वदेवतातीता स्वरूप भगवान् श्री सत्यसाई बाबा परब्रह्मणे नमः। अक्षतान् समर्पयामि। चित्रावती नदी तीर विहारी भक्तवत्सला पवित्र चित्र चारित्र भगवान् भस्मं धार्यताम्। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। सर्वदेवतातीता स्वरूप भगवान् श्री सत्यसाई बाबा परब्रह्मणे नमः। भस्मं समर्पयामि। भस्म अगर सामने नहीं है, अक्षता उसके जगह पे समर्पित कर सकते हैं। भस्म स्वरूपान अक्षतान समर्पयामि। ऐसे जब भी कोई पदार्थ नहीं है तो उसका नाम लेके स्वरूपान अक्षतान समर्पयामि, ये वैसा कर सकते हैं हमेशा। पुष्प स्वरूपान अक्षतान समर्पयामि आदि। Whenever any particular dravya or particular puja item is not there, one can always offer akshata. The emotion of devotion which is there for the Lord, that is the most important. Sai Ram. भक्ति भाव सबसे महत्वपूर्ण है, भगवान को वही चाहिए। भगवान ने भगवत गीता में भी कहा है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, सिर्फ पानी भी दे दो, भक्ति से दे दो। लकी यो में भक्त्या प्रयच्छति, स्वामी ने कहा है। साई राम। पुष्पार्चना करना है तो पुष्प का थाली अपने पास ले लीजिए और नमः के उच्चार के साथ समर्पित करना है। यहाँ पर थोड़ा दोबारा मैं कहता हूँ संभल के, यहाँ पर अंग पूजा है और फिर अष्टोत्तर शतनामावली है, उतने पुष्प समर्पित करने हैं, तो थोड़ा संभाल के कीजिए। साई राम। नाउ पुष्पा अर्चना फॉर द लॉर्ड विल बी डन एंड
Anga Puja and Ashtottara, both the pujas are there and the flowers have to be offered. So please be careful about the amount of the flowers. Sai Ram. Tulasi Kunda Mandarai Parijataisha Champakai Pujayishyamyaham Bhaktya Tvangrahana Paratpara Sarvadevata Tita Swarupa Bhagavan Shri Satya Sai Baba Parabrahmane Namaha पुष्पाणि समर्पयामि. हर एक नमःकार के साथ पुष्प समर्पित कीजिए. ओम श्री सर्वदेवता स्वरूपाय नमः. पादौ पूजयामि. अंग पूजा है, पाद से लेकर शिरस तक सारे अंगों का पूजा है. फ्रॉम द फीट अप टू द हेड, ऑल द पार्ट्स ऑफ भगवान्स डिवाइन फॉर्म, द पूजा इज बीइंग डन. ओम श्री सर्वदेवता स्वरूपाय नमः. पादौ पूजयामि. ओम श्री सर्वशक्ति स्वरूपाय नमः. गुल्फौ पूजयामि. ओम श्री पर्तिपुरीश्वराय नमः. जंघौ पूजयामि. ओम श्री प्रशांति निलयाय नमः. जानू पूजयामि. ओम श्री सर्वाधाराय नमः. ऊरू पूजयामि. ओम श्री साधुरूपाय नमः. जघनं पूजयामि. ओम श्री सच्चिदानंदाय नमः. कटिं पूजयामि. ओम श्री सत्यव्रताय नमः. मध्यमं पूजयामि. ओम श्री सर्वभूतान्तर्यामिने नमः. उदरं पूजयामि. ओम श्री सर्वसाक्षिणे नमः. हृदयं पूजयामि. ओम श्री शान्तिस्वरूपाय नमः. हस्तौ पूजयामि. ओम श्री निराडम्बराय नमः. बाहून् पूजयामि. ओम श्री ज्ञानबोधकाय नमः. स्कन्धौ पूजयामि. ओम श्री सिद्धसंकल्पाय नमः. कण्ठं पूजयामि. ओम श्री सुन्दरांगाय नमः. चुबुकं पूजयामि. ओम श्री प्रपन्नार्तिहराय नमः. अधरोष्ठं पूजयामि. ओम श्री प्रसन्नवदनाय नमः. मुखं पूजयामि. ओम श्री मनोभागतीताय नमः. नासिकान् पूजयामि. ओम श्री बहुरूप विश्वमूर्तये नमः. कर्णौ पूजयामि. ओम श्री पुण्यवीक्षणाय नमः. नेत्रौ पूजयामि. ओम श्री संगरहिताय नमः. फालं पूजयामि. ओम श्री सर्वसिद्धिप्रदाय नमः. केशानि पूजयामि. ओम श्री प्रेमरूपाय नमः. शिरः पूजयामि. ओम श्री सत्यसाई देवताभ्यो नमः. सर्वाणि अंगानि पूजयामि. अष्टोत्तर शतनामावली. ओम श्री साई सत्य साई बाबाय नमः. ओम श्री साई सत्यस्वरूपाय नमः. ओम श्री साई सत्यधर्मपरायणाय नमः. ओम श्री साई वरदाय नमः. ओम श्री साई सत्पुरुषाय नमः. ओम श्री साई सत्यगुणात्मने नमः. ओम श्री साई साधुवर्धनाय नमः. ओम श्री साई साधुजनपोषणाय नमः. ओम श्री साई सर्वज्ञाय नमः. ओम श्री साई सर्वजनप्रियाय नमः. ओम श्री साई सर्वशक्तिमूर्तये नमः. ओम श्री साई सर्वेशाय नमः. ओम श्री साई सर्वसंगपरित्यागिने नमः. ओम श्री साई सर्वांतर्यामिने नमः. ओम श्री साई महिमात्मने नमः. ओम श्री साई महेश्वर स्वरूपाय नमः. ओम श्री साई पर्तिग्रामोद्भवाय नमः. ओम श्री साई पर्तिक्षेत्र निवासिने नमः. ओम श्री साई यशःकाय शिरडिवासिने नमः. ओम श्री साई जोड़ी आदिपल्ली सोमप्पाय नमः. ओम श्री साई भारद्वाज ऋषिगोत्राय नमः. ओम श्री साई भक्तवत्सलाय नमः. ओम श्री साई अपांतरात्मने नमः. ओम श्री साई अवतारमूर्तये नमः. ओम श्री साई सर्वभयनिवारिणे नमः. ओम श्री साई आपस्तंभसूत्राय नमः. ओम श्री साई अभयप्रदाय नमः. ओम श्री साई रत्नाकरवंशोद्भवाय नमः. ओम श्री साई शिरडी साई अभेदशक्त्यावताराय नमः. ओम श्री साई शंकराय नमः. ओम श्री साई शिरडी साई मूर्तये नमः. ओम श्री साई द्वारकामायि वासिने नमः. ओम श्री साई चित्रावती तटपुट्टपर्तिविहारिणे नमः. ओम श्री साई शक्तिप्रदाय नमः. ओम श्री साई शरणागतत्राणाय नमः. ओम श्री साई आनंदाय नमः. ओम श्री साई आनंददाय नमः. ओम श्री साई आर्तत्राणपरायणाय नमः. ओम श्री साई अनाथनाथाय नमः. ओम श्री साई असहाय सहायाय नमः. ओम श्री साई लोकबांधवाय
नमः। ओम श्री साई लोकरक्षापरायणाय नमः। ओम श्री साई लोकनाथाय नमः। ओम श्री साई दीनजनपोषणाय नमः। ओम श्री साई मूर्तित्रयस्वरूपाय नमः। ओम श्री साई मुक्तिप्रदाय नमः। ओम श्री साई कलुषविदूराय नमः। ओम श्री साई करुणाकराय नमः। ओम श्री साई सर्वाधाराय नमः। ओम श्री साई सर्वहृदयवासिने नमः। ओम श्री साई पुण्यफलप्रदाय नमः। ओम श्री साई सर्वपापक्षयकराय नमः। ओम श्री साई सर्वरोगनिवारिणे नमः। ओम श्री साई सर्वबाधाहराय नमः। ओम श्री साई अनन्तनुतकर्तृणे नमः। ओम श्री साई आदिपुरुषाय नमः। ओम श्री साई आदिशक्तये नमः। ओम श्री साई अपरूपशक्तिने नमः। ओम श्री साई अव्यक्तरूपिणे नमः। ओम श्री साई कामक्रोधध्वंसिने नमः। ओम श्री साई कनकाम्बरधारिणे नमः। ओम श्री साई अद्भुतचर्याय नमः। ओम श्री साई आपद्बान्धवाय नमः। ओम श्री साई प्रेमात्मने नमः। ओम श्री साई प्रेममूर्तये नमः। ओम श्री साई प्रेमप्रदाय नमः। ओम श्री साई प्रियाय नमः। ओम श्री साई भक्तप्रियाय नमः। ओम श्री साई भक्तमन्दाराय नमः। ओम श्री साई भक्तजनहृदयविहाराय नमः। ओम श्री साई भक्तजनहृदयालयाय नमः। ओम श्री साई भक्तपराधीनाय नमः। ओम श्री साई भक्तिज्ञानप्रदीपाय नमः। ओम श्री साई भक्तिज्ञानप्रदाय नमः। ओम श्री साई सुज्ञानमार्गदर्शकाय नमः। ओम श्री साई ज्ञानस्वरूपाय नमः। ओम श्री साई गीताबोधकाय नमः। ओम श्री साई ज्ञानसिद्धिदाय नमः। ओम श्री साई सुंदररूपाय नमः। ओम श्री साई पुण्यपुरुषाय नमः। ओम श्री साई फलप्रदाय नमः। ओम श्री साई पुरुषोत्तमाय नमः। ओम श्री साई पुराणपुरुषाय नमः। ओम श्री साई अतीताय नमः। ओम श्री साई कालातीताय नमः। ओम श्री साई सिद्धिरूपाय नमः। ओम श्री साई सिद्धसंकल्पाय नमः। ओम श्री साई आरोग्यप्रदाय नमः। ओम श्री साई अन्नवस्त्रधाय नमः। ओम श्री साई संसार दुःखक्षयकराय नमः। ओम श्री साई सर्वाभीष्टप्रदाय नमः। ओम श्री साई कल्याणगुणाय नमः। ओम श्री साई कर्मध्वंसिने नमः। ओम श्री साई साधुमानसशोभिताय नमः। ओम श्री साई सर्वमतसम्मताय नमः। ओम श्री साई साधुमानसपरिशोधकाय नमः। ओम श्री साई साधकानुग्रहवटवृक्षप्रतिष्ठापकाय नमः। ओम श्री साई सकलसंशयहराय नमः। ओम श्री साई सकलतत्त्वबोधकाय नमः। ओम श्री साई योगीश्वराय नमः। ओम श्री साई योगीन्द्रवन्दिताय नमः। ओम श्री साई सर्वमंगलकराय नमः। ओम श्री साई सर्वसिद्धिप्रदाय नमः। ओम श्री साई आपन्निवारिणे नमः। ओम श्री साई आर्तिहराय नमः। ओम श्री साई शान्तमूर्तये नमः। ओम श्री साई सुलभप्रसन्नाय नमः। ओम श्री साई भगवान श्री सत्यसाई बाबाय नमः। नानाविध, दोहराइए प्लीज रिपीट, नानाविध परिमल पत्रपुष्पाणि समर्पयामि। यहाँ पर पूर्वार्ध संपन्न हुआ पूजा का। अभी सत्य साई कथा का पठन है। ओम श्री साई राम। हर अध्याय के अंत में धूप, दीप और नैवेद्य, अगरबत्ती दिखाना है, दीप दिखाना है। हाँ, आएगा, अगरबत्ती का आयोजन हो जाएगा, आप बेफिक्र रहिए साई राम। तो हर अध्याय के अंत में धूप, दीप और एक फल का नैवेद्य भगवान को। ठीक है, जय साई राम। सत्यसाई व्रत कथा प्रारंभ करते हैं। श्री सत्यसाई परब्रह्मणे नमः। प्रथम अध्याय, अवतरण और बाल्यावस्था। भगवान श्री सत्यसाई बाबा का जन्म दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित पुट्टपर्ती नामक एक छोटे से गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम श्री पेद्दा वेंकप्पा राजू और उनके दिव्य माता का नाम ईश्वरम्मा था। माता ईश्वरम्मा एक परम पवित्र और धार्मिक महिला थीं। वे हमेशा ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए कोई न कोई व्रत या अनुष्ठान करती रहती थी। उनकी इस भगवत भक्ति तथा प्रेम से प्रसन्न होकर भगवान नारायण ने फिर एक बार पृथ्वी पर जन्म लेकर दिव्यता को प्रकाशित करते हुए
दैवीय नाटक खेलने का निश्चय किया। तभी तो उन्होंने ईश्वरम्मा को अपनी माता और पेद्दा वेंकप्पराजू को अपना पिता चुना। भगवान बाबा का जन्म साधारण मनुष्य के भांति नहीं हुआ था। माता ईश्वरम्मा के गर्भ में शिशु का अवतरण एक दैवीय घटना थी। स्वयं माता ईश्वरम्मा ने इस बात की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि एक बार जब वे कुएं से पानी भरने गईं, तब उन्होंने देखा कि एक नीले रंग की चमकदार रोशनी, उन्होंने बताया कि एक बार जब वे कुएं से पानी भरने गईं, तब उन्होंने देखा कि एक नीले रंग की चमकदार रोशनी आकाश से नीचे उतरी और उनके शरीर में प्रवेश कर गई। फलस्वरूप वे बेहोश होकर नीचे गिर गईं। ईश्वरम्मा की सास ने पहले ही ईश्वरम्मा को चेताया था कि यदि उनके साथ कुछ ऐसा अप्रत्याशित घटित हो तो वे घबराएं नहीं, बल्कि उसे ईश्वर की इच्छा समझे। इस बात का पता किसी को भी नहीं चला। इस रहस्य का उद्घाटन तो माता ईश्वरम्मा ने स्वयं महासमाधि लेने के कुछ दिन पूर्व ही किया था, जब स्वयं भगवान ने उनसे अपना कुएं वाला अनुभव लोगों को सुनाने के लिए कहा। अब शिशु गर्भ में जैसे जैसे बड़ा हो रहा था और प्रसव का समय धीरे धीरे निकट आ जा रहा था, तभी से घर में कुछ न कुछ अद्भुत घटनाएं घटित होने लगी। रात्रि के समय जब सब सो रहे होते तो घर में रखे हुए वाद्य यंत्र सहसा स्वतः ही बज उठते। घर में रखी हुई वीणा के तार जैसे किसी अदृश्य हाथों द्वारा छेड़े जा रहे हों, या मृदंगम कोई बजा रहा हो, कहीं घंटियां बजने का मधुर ध्वनि सुनाई देती थी। संगीत की मधुर स्वर लहरी जैसे किसी देवलोक से आ रही हो। सारा घर संगीत के मधुर ध्वनि से तरंगित हो उठता था। घर के सभी सदस्य निद्रा से जाग उठते थे। घर एक अद्भुत सुगंध से भर जाता था। अंततः वह शुभ दिन आया जो कार्तिक मास का सोमवार भगवान शिव की पूजा का विशेष दिन था, और तारीख थी 23 नवंबर सन 1926। इस वर्ष का नाम था अक्षय वर्ष और उस समय का नक्षत्र था आर्द्रा। माता ईश्वरम्मा की सास ने तभी सत्यनारायण की पूजा अर्चना समाप्त करके ईश्वर के प्रसाद अपने पुत्र वधू को दिया था। जैसे ही माता ने प्रसाद ग्रहण किया, उसी के थोड़ी देर के पश्चात ही भगवान श्री सत्य साई का जन्म हुआ। बालक बहुत ही अति सुंदर था। बालक को नाम दिया गया सत्यनारायण। एक दिन की घटना है, बालक सत्या पालने में सोया हुआ था। तभी पास खड़ी महिलाओं ने देखा कि बालक के नीचे कुछ हलचल सी हो रही है। अब जैसे ही उन्होंने शिशु को गोदी में उठाया तो उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने एक नाग को वहाँ पर देखा, जहाँ शिशु सोया था बिल्कुल वहीं। वह नाग कुछ गज की दूरी पर जाकर अचानक अदृश्य हो गया, गायब हो गया। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो भगवान आदिशेष वैकुंठ में अपने स्वामी को न पाकर उनका सानिध्य पाने के लिए स्वयं पृथ्वी पर उतर आए थे। बाल सत्यनारायण ने तो कभी मांसाहारी आहार को छुआ ही नहीं, न कभी उन घरों में वो दर्शन देते थे जहाँ ऐसा आहार बनता हो। पड़ोस में ही वहाँ एक कर्नम सुब्बम्मा नाम की सात्विक महिला रहती थी। बालक सत्या उनके बहुत प्रिय थे, तो वो वहीं पे अधिकतम समय सुब्बम्मा के घर पर ही रहते थे। इस अवतार के लिए भी उन्होंने एक यशोदा माता ढूंढ लिया था। बालक सत्या में एक और भी विशेष आदत थी। जो भी याचक उनके द्वार पर आता था वह कभी भी खाली हाथ नहीं लौटता था। वे स्वयं इस बात का पूरा ध्यान रखते थे कि भूखे को भरपेट भोजन मिले। कभी कभी तो वे स्वयं अपना भोजन भी उठाकर भिखारियों को दे देते थे। उनकी माँ और बहन भी कभी कभी इस दानशीलता से परेशान हो जाती थी। बाद में जब वे सत्या को भोजन के लिए बुलाती तो वे कह देते कि मैंने भोजन कर लिया है। विश्वास दिलाने के लिए अपने नन्हे मुन्ने हाथ भी सूंघने के लिए आगे कर देते थे। उनके दैवीय कोमल हाथों से सचमुच बहुत ही सुस्वादु भोजन का सुगंध आ रहा होता था। यह पूछने पर कि किसने उन्हें भोजन खिलाया तो सत्या उत्तर देते थे, एक दादाजी ने मुझे खिलाया। यद्यपि सत्या अभी बालक ही थे, परंतु उनका वास्तविक स्वभाव तो प्रेम ही है। इस बात को उजागर होने में अधिक देर नहीं लगी।
बालक सत्या अपने साथियों को कभी भी दुखी नहीं देख सकते थे। उनको खुश करने के लिए वे अक्सर शून्य में से अपने हाथ घुमाकर टॉफ़ी, पेंसिल, कॉपी, रबर आदि वस्तुएं निकालकर उन्हें देते रहते थे। वह सभी छोटे छोटे बच्चों को एकत्रित करते हुए गुड़ियों के घर बनाते थे और उसके अंदर भगवान के छोटे छोटे फोटो लगाकर सभी बच्चों से भजन कराते थे। प्राथमिक शिक्षा समाप्त कर लेने के उपरांत बालक सत्या को आगे की शिक्षा के लिए पास के ही गांव बुक्कापट्टनम में दाखिल कर दिया। वहाँ भी सत्या शीघ्र ही अपने सहपाठियों में अत्यंत लोकप्रिय हो गए। उनके एक शिक्षक थे श्री महबूब खान, जो सत्या से बहुत स्नेह करते थे। एक बार ऐसी बात हुई कि एक शिक्षक ने सत्या को बेंच पर खड़े होने की सजा दे दी। बालक की भूल केवल इतनी सी थी कि वह शिक्षक द्वारा लिखाए जाने वाले नोट्स नहीं लिख रहा था, जबकि सभी बच्चे बड़े मनोयोग से लिख रहे थे। इससे शिक्षक के अहंकार को चोट पहुंची, जिसके फलस्वरूप उन्होंने सत्या को उपरोक्त सजा दे दी, बेंच पर खड़े होने की। घंटी बज चुकी थी और उनके पढ़ाने का समय पूरा हो गया था, परंतु वह शिक्षक अपनी कुर्सी से उठ ही नहीं पाए। सत्या अभी भी बेंच पर खड़े थे। अगले शिक्षक श्री महबूब खान वहाँ पर आए और उन्हें कक्षा में प्रवेश किया। खान साहब अब अपने सहयोगी के पास गए और उन्हें कुर्सी खाली करने के लिए कहा। बेचारे शिक्षक जो पहले से बहुत ही शर्मिंदा थे, अब तो लगभग रो उठे। बोले, साहब मैं क्या करूं, यह कुर्सी ही मुझे नहीं छोड़ रही है। खान साहब ने कक्षा में चारों ओर देखा, क्योंकि बच्चों ने दोनों शिक्षकों को आपसी बातचीत सुन ली थी और मुंह छिपाकर हंस रहे थे। खान साहब ने देखा कि सत्या को बेंच पर खड़ा किया हुआ है और वह शांत भाव से सारे नाटक का आनंद ले रहा है। उन्होंने तुरंत भांप लिया कि आखिर हुआ क्या है। खान साहब एकदम हतप्रभ रह गए, एकदम स्तब्ध रह गए। उन्होंने शिक्षक से कहा कि वे तुरंत सत्या को नीचे उतरने के लिए कहें, तभी वे कुर्सी से उठ सकेंगे। शिक्षक, जो पहले ही काफ़ी अपमानित और शर्मिंदा महसूस कर रहे थे, उन्होंने सत्या को नीचे उतरने के लिए निवेदन कर लिया और जैसे ही सत्या नीचे उतरे, कुर्सी भी तत्काल शिक्षक से अलग हो गई। इस तरह से बालक की दिव्यता हर क्षण प्रकट होती रहती थी। एक बार एक टांगे वाले का घोड़ा खो गया था। उसने सब जगह बहुत खोजा, परंतु कहीं नहीं मिला। उसे किसी ने बताया कि पास ही के गांव में एक दिव्य बालक रहता है, वही तुम्हें घोड़े के विषय में कुछ बता सकता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे शिरडी वाले अवतार में हुआ था, बालक ने टांगे वाले को प्यार से बुलाया और बताया कि उसका घोड़ा गांव के बाहर एक आम के बाग में घास चर रहा है। टांगे वाले की खुशी को ठिकाना ही नहीं रहा जब उसने वैसा ही पाया जैसे बालक ने बताया था। उस दिन के बाद से तो सभी टांगे वाले बालक सत्या को अपने टांगे में बैठने के लिए विनती करते थे, जिससे उनका अनुग्रह उन्हें प्राप्त हो सके और उनका धंधा भी अच्छा चले। ओम श्री सत्यसाई सत्यनारायण कथा का प्रथम अध्याय यहाँ संपूर्ण हुआ। सर्वत्र मंगलम भवतु, सर्वत्र शांतिर्भवतु। ओम श्री सत्यसाई ने नमः। धूपमाघ्रापयामी, धूप दिखा दीजिए। दीपम संदर्शयामी, दीप प्रज्वलित दीप भगवान को आरती कर दीजिए। एक बार आचमन कर दीजिए। आचमनीयम समर्पयामी, जल समर्पित कर दीजिए। एक केला भगवान के समीप रख दीजिए, उसको नैवेद्य कर दीजिए, उसको प्रोक्षण कर दीजिए। दोहराइए, प्लीज रिपीट। कदली फलम, जो पहले का प्रसाद है उसको किनारे रख सकते हैं आप। थाली में अगर जगह नहीं है तो पहले के प्रसाद को आप किनारे रख सकते हैं। अलग रखिए, जो अर्पित फल है और जो अर्पित करने हैं उनको अलग रखिए बस। साई राम। Please keep the fruit which is to be offered and fruit which has already been offered, keep it separately, but one can remove the offering after the naivedyam. महानैवेद्यम निवेदयामि, एक बार जल समर्पित कर दीजिए। आचमनीयम समर्पयामि, श्री सत्यसाई परब्रह्मणे नमः। ठीक है, तेल का आयोजन हो जाएगा, आएंगे तो दे देंगे आपको। साई राम।
सभी दीपों के लिए थोड़ा सा तेल वॉलंटियर्स प्लीज दे दीजिए। साई राम। ओम श्री साई राम। द्वितीय अध्याय साई बाबा के मिशन का प्रारंभ। 8 मार्च सन 1940 इस दिन को संध्या समय में बालक सत्या के मुख से एक हृदय विदारक चीख निकली और वे अचेत होकर पृथ्वी पर गिर गए। उन्होंने अपने दाएं पैर का अंगूठा पकड़ा हुआ था। घर में उपस्थित सभी लोगों ने सोचा कि बिच्छू ने काट लिया है, परंतु वास्तव में तो सत्या अपने किसी भक्त की रक्षा के लिए अपने शरीर को छोड़कर कहीं चले गए थे। उस समय तक सत्या ने पहले कभी सबके सामने ऐसा नहीं किया था, अतः लोगों को इस बात की बिल्कुल जानकारी नहीं थी। सभी लोग बिच्छू के तलाश में जुट गए, परंतु वहाँ तो कोई भी बिच्छू दिखाई नहीं दिया। भला दिखता भी कैसे, क्योंकि बालक की इस अवस्था का कारण तो कुछ और ही था। कुछ समय के बाद सत्या ने अपनी आंखें खोली, परंतु वे ऐसे ही शांत थे जैसे कुछ हुआ न हो। दूसरे दिन वह फिर अचेत हो गए। बाद में जब उन्होंने आंखें खोली तो लोगों को बताया कि ग्राम देवी मुत्यालम्मा नाराज हैं, अतः आप में से कोई जाकर नारियल चढ़ाए और कर्पूर से उनकी आरती करें। जब देवी के समक्ष नारियल फोड़ा गया तो यहाँ घर में उपस्थित लोगों को सत्या ने बताया कि नारियल 3 भागों में टूटा है, जो कि ऐसे ही हुआ था, वास्तव रूप में ऐसे ही हुआ था। अब कुछ लोग सोचने लगे कि सत्या के ऊपर किसी प्रेत की छाया है। उन्होंने भिन्न भिन्न प्रकार के जड़ी बूटियों और दवाइयों से उनका उपचार करना शुरू कर दिया। कुछ ने कहा कि सत्या पागल है और उन्होंने उनके माता पिता को बुला लिया। सत्या के माता पिता आए और जब अपने प्रिय पुत्र की यह दशा देखी तो उन्हें बहुत दुख हुआ। वे भी नहीं जानते थे कि क्या किया जाए, अतः वे सत्या को ओझा के पास ले गए। उस तांत्रिक का भूत भगाने का तरीका कुछ ज़्यादा ही कष्टकारी था। उसने एक तेज धारदार चाकू से सत्या के सिर की कोमल त्वचा को बड़ी निर्दयता से काट दिया तथा उस पर नींबू निचोड़ दिया और कोई तीखा दुर्गंधपूर्ण पाउडर छिड़क दिया। फलस्वरूप सत्या का सुकोमल चेहरा अत्यधिक सूज गया। आंखें भी सूजकर मोटी मोटी हो गईं। सत्या के ऐसी हालत देखकर उसकी माता और बहन दोनों भी बहुत दुखी हुई, परंतु वे विवश थीं क्योंकि उन्होंने ही तो सत्या को ठीक करने के लिए तांत्रिक को सौंपा हुआ था। उनको दुखी देखकर सत्या ने अपनी बहन को इशारे से बुलाकर कहा कि यहीं पास में ही एक जड़ी बूटी है, उसको तोड़कर उसका अर्क निकालकर वह उनके आंखों पर लगा दे। सत्या की माता और बहन ने उस तांत्रिक से सत्या को छोड़ देने की प्रार्थना की और उन्होंने तांत्रिक से कहा कि जैसे ही सत्या कुछ ठीक हो जाएगा उसे वह दोबारा उसके पास ले आएंगी। उस तांत्रिक ने अनमने भाव से सत्या को छोड़ा। सत्या के कथनानुसार ही उस जड़ी बूटी के अर्क की कुछ बूंदें उनके आंखों में डाली। शीघ्र ही सत्या की आंखें स्वस्थ हो गईं और पहले जैसे ही शरारत से चमकने लगी। समय बीतता गया। अब सत्या ग्रामीणों को वैदिक दर्शन की उत्कृष्टता का योगागान कराते थे। अब उन्होंने साईं बाबा नामक एक संत के बारे में बातें करना प्रारंभ कर दिया। अब तो सत्या के पिता से न रहा गया। एक दिन उन्होंने रोष में आकर एक छड़ी उठाई और सत्या को सबक सिखाने और उनका भूत उतारने इरादे से उनके पास पहुँचे। उन्होंने सत्या से पूछा, तुम कौन हो, सच सच बताओ। सत्या ने बहुत शांत तरीके से, बड़े प्रेम से और अधिकारपूर्ण ढंग से कहा, मैं साईं बाबा हूँ। अपने घरों को स्वच्छ रखो और मन को शुद्ध रखो, मैं उसमें सदा सदा के लिए निवास करूँगा। यह सुनते ही सत्या के पिता पेद्दा वेंकप्पराजू के हाथ से छड़ी गिर गई और वे बिल्कुल स्तब्ध रह गए। फिर उन्होंने कहा, यदि तुम सचमुच में साईं बाबा हो तो हमें इस बात का प्रमाण दो। सत्या ने अंजुलि भरकर चमेली के फूल लिए और उन्हें धरती पर गिरा दिया।
फूलों ने गिरते ही जमीन पर तेलुगु भाषा में साईं बाबा का शाब्दिक रूप धारण कर लिया। उसके बाद से न केवल उनके गांव के लोग बल्कि आसपास के गांव के लोग भी उन्हें साईं बाबा के नाम से ही पुकारने लगे और बड़े भक्तिभाव के साथ उनकी पूजा करने लगे। प्रत्येक बृहस्पतिवार को विशेष पूजा अर्चना की जाने लगी। यहाँ पर श्री सत्यसाई कथा का दूसरा अध्याय, श्री सत्यसाई सत्यनारायण कथा का दूसरा अध्याय संपूर्ण हुआ। सर्वत्र मंगलम भवतु, सर्वत्र शांतिर्भवतु। ओम श्री सत्यसाईने नमः। धूपमाघ्रापयामि, दीपम संदर्शयामि। धूप और दीप दिखा दीजिए भगवान को। एक जल अर्पित कर दिए आचमनीयम रूप में। आचमनीयम समर्पयामि। नैवेद्य स्वरूप एक फल ले लीजिए, भगवान के समय रख दीजिए। उस पर जल प्रोक्षण कर, जल छिड़क दीजिए, जल प्रोक्षण कर दीजिए। धूपम दीपम एंड नैवेद्यम, धूपम एंड दीपम, देन वन कैन ऑफर लिटिल बिट वाटर, देन वन कैन कीप फ्रेश फ्रूट फॉर नैवेद्यम। स्प्रिंकल द फ्रूट विथ वाटर। नैवेद्यम निवेदयामि। फिर आचमन दे दीजिए, जल समर्पित कर दीजिए। आचमनीयम समर्पयामि। प्लीज ऑफर वाटर। साई राम। अब कथा का तीसरा अध्याय प्रारंभ करते हैं। तृतीय अध्याय, साईं बाबा की दिव्य लीलाएं। जैसे जैसे सत्या बड़े हो रहे थे, गांव के लोगों का ध्यान अब उनके अंदर छिपी हुई दिव्य शक्तियों की ओर जाने लगा। अब वे बालक सत्या को बड़ी श्रद्धा और सम्मान के साथ स्वामी इस तरीके से संबोधित करते थे। एक बार की बात है, स्वामी अपने परिवार के सदस्यों के साथ श्री विरूपाक्ष के मंदिर दर्शन के लिए हम्पी नगर गए थे। जब वे मंदिर के पास पहुंचे तो स्वामी अन्य सदस्यों के साथ मंदिर के अंदर नहीं गए, बल्कि मंदिर के द्वार के निकट बाहर ही खड़े रहे। जब गर्भगृह में पूजा आरंभ हुई तो सत्या को शिवलिंग के स्थान पर खड़े देखकर सबको बड़ा अचंबा हुआ। वे तो उन्हें अभी अभी द्वार पर ही छोड़कर आए थे, वह अचानक गर्भगृह के अंदर कैसे पहुंच गए। वे देखने के लिए मंदिर के बाहर की ओर भागे तो स्वामी को बाहर ही खड़े हुए पाया उन्होंने। वे अकेले ही बाहर खड़े हुए आकाश की ओर निहार रहे थे। उनके गुलाबी अधरों पर, उनके गुलाबी होंठों पर मासूमियत भरी मुस्कान थी। सब के सब आश्चर्यचकित होकर स्वामी के चरणों पर गिर पड़े। एक दिन स्वामी स्कूल से लौटे और अपनी किताबों का थैला एक तरफ फेंक दिया। ऊंची आवाज में उन्होंने घोषणा की, माया जा चुकी है, अब मैं केवल तुम्हारा ही नहीं हूं, मेरे भक्त मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। स्वामी जी की भाभी अर्थात उनके भाई श्री शेषमा राजू की पत्नी आवाज सुनकर बाहर की ओर भागी। उसने स्वामी के मुखमंडल के चारों ओर एक विचित्र प्रकाश पुंज देखा। वह प्रकाश पुंज इतना चमकदार था कि उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। स्वामी की माता ने उनसे प्रार्थना की, ओ बेटा, यदि तुम हमें छोड़कर अपने भक्तों के पास जाना ही चाहते हो तो यहाँ पुट्टपर्ती में ही रहो। यहीं रहकर अपने सभी बच्चों की रक्षा करो और अपना अनुग्रह उन पर बनाए रखो। गरिमामय ढंग से स्वामी ने अपनी माता की यह विनम्र प्रार्थना स्वीकार कर ली। काफ़ी समय तक स्वामी कर्नम सुब्बम्मा के घर पर ही रहे, क्योंकि उनका घर इतना बड़ा था कि स्वामी के दर्शन के लिए आने वाले भक्तों की बढ़ती हुई संख्या वहीं समा सकती थी। इसके अतिरिक्त सुब्बम्मा स्वयं भी एक अनन्य भक्त थी और स्वामी को हृदय से प्रेम करती थी। सभी जगहों से भक्त आने लगे। कभी कभी सभी उपस्थित लोगों को खिलाने के लिए भोजन अपर्याप्त हो जाता था, कम हो जाता था। ऐसे समय पर सुब्बम्मा स्वामी से मदद करने की प्रार्थना करती थी। स्वामी 2 नारियल लेकर रसोई में जाते और दोनों को आपस में टकरा कर तोड़ देते। नारियल पानी को भोजन पर छिड़क देते। अब स्वतः ही भोजन न केवल मौजूद लोगों के खिलाने के लिए पर्याप्त होता, बल्कि बच भी जाता था। अब जैसे जैसे भक्तों की भीड़ बढ़ती गई, उन्होंने सुब्बम्मा के घर के समीप पर भजन हॉल बनाने की इच्छा व्यक्त की। एक बार की बात है, जब स्वामी सुब्बम्मा के घर पर ही ठहरे हुए थे, लक्ष्मैया नाम का पुजारी अपने किसी मित्र के साथ वहां आया।
उसके मित्र की पत्नी भी साथ थी, जो कि मानसिक रूप से बीमार थी। पुजारी ने अपने मित्र को उसकी पत्नी सहित चित्रावती नदी के किनारे पर ही प्रतीक्षा करने के लिए कहा। पुजारी सुब्बम्मा के घर पहुंचा और स्वामी से उसकी भेंट हो गई। यह न जानते हुए कि वह किससे मिल रहा है, पुजारी ने स्वामी से पूछा, मेरा मानना है यहाँ कोई लड़का है जो रोगियों को ठीक करता है, कृपया क्या आप मुझे उस तक ले चलेंगे, क्योंकि मेरे साथ मेरा एक मित्र है और उसकी पागल पत्नी है। स्वामी ने कहा कि वह अपने मित्र दंपति को उनके पास ही ले आए। उन्होंने उन्हें स्नान करके अन्य भक्तों के साथ ही बैठने को कहा। स्वामी ने फिर सबको प्रसाद दिया। स्वामी ने दिव्य विभूति सृजित की और उस पागल महिला के मुख में डाल दी। बाद में स्वामी ने वही फल काटकर उन्हें खाने के लिए दे दिए, जो स्वामी को अर्पण करने के लिए लाए थे। वह पागल महिला तत्काल ही स्वस्थ हो गई। सभी लोग जो वहाँ उपस्थित थे आश्चर्य से इस घटना को देखते रह गए। फिर वह दंपति तथा पुजारी स्वामी को आदर और श्रद्धा से नमन करके खुशी खुशी अपने घर चले गए। अब जैसे जैसे कर्णम सुब्बम्मा के जीवन का अंतिम समय निकट आ रहा था, स्वामी ने उनसे खूब दान करवाया। एक बार स्वामी जब बेंगलोर चले गए थे, सुब्बम्मा का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा, लेकिन उनका मन लगातार अपने प्यारे स्वामी में ही लगा रहता था। यहाँ तक कि उनका मुख, जो लगातार स्वामी का पवित्र नाम जप रहा था, हिलना बंद हो गया। उनकी श्वास भी थम गई। उनके आखिरी श्वास स्वामी के नाम के साथ ही बंद हो गई। उसी समय पता नहीं कहाँ से स्वामी उनकी शैया के पास ही प्रकट हो गए। उन्होंने अपनी प्रेममय आवाज़ में पुकारा, सुब्बम्मा, सुब्बम्मा, अपना मुंह खोलो। सुब्बम्मा ने, जो कि शारीरिक रूप से मृतप्राय थी, अपना मुंह खोला और स्वामी के चरण छूने के लिए अपने कंकपते हाथों से आगे बढ़ा दिया। स्वामी ने उनके हाथों को कृपा सहित अपने हाथों में ले लिया और दाहिने हाथ से गंगा जल उसके मुख में डाल दिया। उसकी प्यासी आत्मा जैसे ही तृप्त हो गई, सुब्बम्मा की खुली आंखें स्वामी के मुख कमल को निहार रही थी। उसकी आत्मा पार्थिव शरीर को छोड़कर स्वामी में समा चुकी थी। स्वामी स्वयं कहते थे कि भक्त की इच्छानुसार वे वही स्वरूप धारण करते हैं जैसा भक्त चाहता है। वह कभी गणपति तो कभी मुरुगन, कुछ को श्री राम या श्री कृष्ण, और यहाँ तक कि दूसरों को क्राइस्ट के रूप में भी दर्शन देकर प्रसन्न करते थे। एक बार एक वकील जिसका नाम था कृष्णामाचारी पेनुकोंडा से पुट्टपर्ती आया। उसका एकमात्र उद्देश्य स्वामी के पाखंड को भांडाफोड़ करने का था। स्वामी के पिता उसे स्वामी के पास ले गए। स्वामी उस वकील को एक कमरे में ले गए और आंखें बंद करने को कहा। जब वे कमरे में प्रविष्ट हुए तो स्वामी ने वकील से आंखें खोलने के लिए कहा। वकील ने जब आंखें खोली तो वह वहाँ फूलों की माला से ढकी हुई शिरडी साईं बाबा की समाधि को देखकर दंग रह गया। समाधि के निकट ही एक पुजारी हाथ में पूजा सामग्री लिए हुए खड़ा था। स्वामी ने वकील से दूसरी तरफ देखने को कहा। वहाँ उसने हनुमान मंदिर, नीम वृक्ष, गुरुस्थान और पवित्र शिरडी के अन्य दृश्य देखे। वकील शिरडी साईं बाबा का अनन्य भक्त था। जब उसने शिरडी साईं बाबा की समाधि के दर्शन पाए तो वह स्वामी के चरण कमलों में गिरकर माफ़ी मांगने लगा। दयामूर्ति साई ने उसकी पीठ थपथपाई और तुरंत ही उसे माफ़ कर दिया। स्वामी तो सर्वशक्तिमान हैं। जो भी उन्हें प्रेम से जिस भी नाम से पुकारते हैं उसी नाम से उत्तर देते हैं और आशीर्वाद देते हैं। ओम श्री साई राम। श्री सत्य साई सत्यनारायण कथा का 3य अध्याय संपूर्ण हुआ। सर्वत्र मंगलम भवतु, सर्वत्र शांतिर्भवतु। ओम श्री सत्य साई ने नमः। धूपमाघ्रापयामि। धूप समर्पित कर दीजिए प्लीज। ऑफर दी इंसेंस स्टिक्स। दीपम संदर्शयामि। दीप समर्पित कर दीजिए प्लीज। ऑफर द लैंप टू द लॉर्ड। धूपदीपानंतरम आचमनीयम समर्पयामि। आचमन दे दीजिए, जल समर्पित कर दीजिए।
एक फल नैवेद्य स्वरूपी ले लीजिए। प्लीज़ टेक अ फ्रेश फ्रूट टू ऑफर एज नैवेद्य। उसको प्रोक्षण कर दीजिए। प्लीज़ स्प्रिंकल वाटर ऑन द फ्रूट। नैवेद्यम निवेदयामि। आचमनीयम समर्पयामि। एक बार जल प्रवाहित कर दीजिए आचमन स्वरूपी। प्लीज़ ऑफर वाटर आफ्टर द नैवेद्य। ओम श्री साई राम सत्य साई परब्रह्मणे नमः। साई राम चौथा अध्याय भक्त संरक्षण। श्रीमती सकम्मा के कॉफ़ी के बहुत बड़े बड़े बागान थे। वह एक अत्यंत सात्विक व धार्मिक महिला थीं जो हमेशा दान धर्म करती रहती थीं, जैसे भूखों को भोजन कराना और गरीबों को वस्त्र दान करना इत्यादि। उसके इन्हीं सद्गुणों को देखकर मैसूर के महाराजा ने उसे धर्मपरायणी की उपाधि से विभूषित किया। एक सुबह लगभग 9 बजे जब वह अपनी पूजा के कार्यक्रम में व्यस्त थीं, तभी उनके नौकर ने आकर यह सूचना दी कि कुछ लोग बाहर गाड़ी में आए हैं और उनसे तुरंत मिलना चाहते हैं। सक्कम्मा बाहर आई और उन्होंने देखा कि एक पुरानी सी कार बाहर खड़ी हुई है। उस पर एक बोर्ड लगा हुआ था जिस पर लिखा था कैलाश कमेटी। सामने एक 16 साल का युवक बैठा था जिसके बाल बिखरे हुए से थे। उसके पीछे एक वृद्ध व्यक्ति हिरण की खाल पर बड़ी शान से बैठा हुआ था। उसकी लंबी दाढ़ी थी और शरीर तथा माथे पर पवित्र विभूति लगाई हुई थी। सक्कम्मा ने उस वृद्ध व्यक्ति का स्वागत किया और बड़ी श्रद्धा से उनकी पूजा की, उनके चरण धोए और फूल फल अर्पण किए। उस वृद्ध व्यक्ति ने उससे कहा कि वह 1000 रुपये देकर कैलाश कमेटी की सदस्य बन जाएं। उन्होंने बड़ी प्रसन्नता से रुपए दे दिए, परंतु रुपए और रसीद दोनों ही उसने सक्कम्मा को यह कहकर लौटा दिया कि वह दोबारा आएगा। कुछ वर्ष बीत गए, परंतु कैलाश कमेटी का कहीं कोई नामो निशान नहीं था। एक दिन सक्कम्मा को बेंगलोर जाना पड़ा। वह जब अपनी किसी सहेली से मिलने उसके घर गई तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उसने वहाँ उसी बिखरे बालों वाले लड़के को देखा। उसने जब उस लड़के की ओर देखा तो वह लड़का एक वृद्ध व्यक्ति में बदल गया और थोड़ी देर में पुनः युवक रूप में आ गया। सक्कम्मा स्तब्ध रह गईं। वह उस लड़के के पास गईं और पूछा, क्या तुम वही नहीं हो जो कैलाश कमेटी के रूप में मेरे घर आए थे? लड़के ने उत्तर दिया, बहुत साल पहले तुम्हें 1000 रुपये देने थे जो तुमने नहीं दिए, वही लेने मैं तुम्हारे पास आया था। सक्कम्मा के आंखों में आंसू भर आए। वह स्वामी के समक्ष नतमस्तक हो गई और उनसे उनकी कृपा प्राप्त की। एक दिन स्वामी अपने शैया पर लेटे हुए अपने भक्तों से वार्ता कर रहे थे। अचानक वे चिल्लाए, गोली मत चलाओ, गोली मत चलाओ। फिर वे अचेत हो गए। लगभग 1 घंटे के बाद वे उठे और भक्त को एक टेलीग्राम करने के लिए कहा, जिसमें लिखना था, तुम्हारा रिवॉल्वर मेरे पास है, चिंता मत करो। किसी ने कहा, स्वामी रिवॉल्वर शब्द का प्रयोग उचित नहीं होगा क्योंकि उसमें डाक विभाग के अधिकारियों को आपत्ति हो सकती है, इसलिए रिवॉल्वर के जगह यंत्र लिखा गया और टेलीग्राम भेज दिया गया। सभी को जिज्ञासा हो रही थी, इसलिए उन्होंने बाबा से इस अचानक हुई घटना के बारे में पूछा। स्वामी ने कहा, तुम शीघ्र ही जान जाओगे। 4 दिन बाद भोपाल से एक पत्र आया जो किसी सेना के अधिकारी द्वारा लिखा गया था। परिस्थितियों के कारण अधिकारी बहुत परेशान था, इसलिए उसने स्वयं को गोली मारने का निर्णय किया। उसने परीक्षण के लिए हवा में गोली चलाई। उसी क्षण भारत के दूसरी छोर पर बैठे स्वामी चिल्लाए, गोली मत चलाओ, गोली मत चलाओ। उधर उसी समय अधिकारी के दरवाजे पर दस्तक हुई। अधिकारी ने अपनी रिवॉल्वर को छुपाया और आकर दरवाज़ा खोला। उसका एक पुराना सहपाठी अपने पत्नी और नौकर के साथ उससे मिलने आया था। उसने उन्हें अंदर आने के लिए कहा। कुछ समय बातचीत करने के उपरांत उन्होंने उसके पड़ोसी से मिलने जाने की अनुमति मांगी, क्योंकि वह भी उनका मित्र था, और वे लोग चले गए।
उनके जाने के पश्चात पुनः वह अधिकारी अब अपनी रिवॉल्वर के पास पहुंचा, परंतु रिवॉल्वर नहीं मिला। एक बार फिर दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने दरवाज़ा खोला तो सामने डाकिया खड़ा हुआ था। उसने एक टेलीग्राम पकड़ाया, इस पर लिखा था, तुम्हारा यंत्र मेरे पास है, चिंता मत करो, भेजने वाले बाबा। हमारे स्वामी परम दयालु हैं। जो भी उनकी भक्ति भाव से पूजा करता है उसका न तो कभी निराश करते हैं और ना ही उसका साथ छोड़ते हैं। उन्हें बस प्रेम से पुकारो, वे सत्य, धर्म, शांति और प्रेम रूपी चारों हाथों से मदद के लिए दौड़े चले आते हैं। उनकी महिमा अपरंपार है, अवर्णनीय है। उपरोक्त घटना में अधिकारी की पत्नी बाबा की अनन्य भक्त थी। ओम श्री साई राम। श्री सत्यसाई सत्यनारायण कथा का 4था अध्याय संपूर्ण हुआ। सर्वत्र मंगलम भवतु, सर्वत्र शांतिर्भवतु। ओम श्री सत्यसाई ने नमः। धूपमाघ्रापयामि। भगवान को धूप दर्शा दीजिए। प्लीज ऑफर इंसेंस टू द लॉर्ड। दीपम संदर्शयामि। भगवान को दीप से आरती कर दीजिए। प्लीज डू आरती विद द लैम्प। धूपदीपानंतरम आचमनीयम समर्पयामि। 15 मिनट। आचमनीयम समर्पयामि। नैवेद्य के लिए एक फल ले लीजिए, प्रोक्षण कर दीजिए। नैवेद्यम निवेदयामि। नैवेद्य होने के बाद एक आचमन स्वरूपी जल प्रवाहित कर दीजिए। नैवेद्यनानंतरम आचमनीयम समर्पयामि। ओम श्री सत्यसाई परब्रह्मणे नमः। साई राम। 5वां अध्याय, सर्वदा दयालु साई। एक बार की बात है, स्वामी किसी के घर बेंगलोर गए थे। वहाँ उनके दर्शनों के लिए काफ़ी भीड़ एकत्रित हो गई। कुछ लोग स्वामी को अर्पण करने के लिए फूल और फल लेकर आ रहे थे। दूसरे कुछ लोग स्वामी के चमत्कारों की और उनकी कृपा की चर्चा कर रहे थे। बेचारे एक मोची ने भी उनकी सब बातें सुनी। अचानक उसके दिमाग में भी एक सुंदर सा विचार आया। उसके मन में भी अवतार की एक झलक पाने की लालसा जाग उठी। उसने बागीचे में से एक गुलाब का फूल तोड़ा और भीड़ में घुसकर किसी तरह उधर आगे बढ़ता चला गया जिधर स्वामी बैठे थे। उसने अंदर की ओर झांका। उसी समय स्वामी ने भी बाहर की ओर झांका। दोनों के नयन मिले और मोची के हृदय में स्वामी के लिए अगाध प्रेम उमड़ पड़ा। स्वामी ने प्यार से उसे अपने पास बुलाया। मोची स्वामी के निकट गया और गुलाब का फूल भेंट किया। स्वामी ने उससे गुलाब का फूल ले लिया। स्वामी ने मोची से उसकी मातृभाषा तमिल में ही पूछा, मेरे प्रिय, तुम क्या चाहते हो? मोची इस प्रश्न के लिए तैयार न था। अनायास ही उसके मुंह से निकल गया, स्वामी कृपया मेरी झोपड़ी में दर्शन दीजिए। स्वामी ने कहा, निश्चय ही, मैं अवश्य आऊंगा। मोची की मोची के आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। वह श्रद्धा से स्वामी के चरणों में गिर पड़ा। अपनी उद्विग्नता में वह यह तो पूछना ही भूल गया कि वे कब उसकी कुटिया में आएंगे। स्वामी के वहाँ से जाने के बाद ऐसे प्रश्न मोची के दिमाग में घूमने लगे। दिन बीतते गए, परंतु मोची की कुटिया में भगवान का दर्शन के कोई संकेत भी नजर नहीं आ रहे थे। एक दिन जब मोची फूटी टूटी चप्पलें सिला रहा था, उसके सामने ही सड़क के किनारे पर एक कार आकर रुकी। मोची ने सोचा कि यह पुलिस की कार होगी। जल्दी से उसने अपना सामान समेटा और डर के मारे भागने को उद्यत हुआ। उसने सोचा कि पुलिस वाले उसे वहाँ से भगाने के लिए ही तो आए होंगे। तभी स्वामी कार से बाहर आए और मोची से कहा, डरो मत। बल्कि उन्होंने उसे अपनी कार में बिठाया और कार आगे बढ़ चली। मोची तो एकदम अवाक था। उसके मुख से शब्द ही नहीं फूट रहे थे। वह निःशब्द ठगा सा बैठा रहा। स्वामी ने ड्राइवर को मोची के घर का रास्ता बताया और कार ठीक उसकी कुटिया के सामने आकर रुकी। मोची कार से उतरकर सीधा कुटिया में भागा। उसने अपनी पत्नी को गद्दा भिजाने के लिए कहा और स्वयं स्वामी के सत्कार करने के लिए बाहर भागा। स्वामी आए और उसके गद्दे पर बैठ गए।
मोची को एहसास हुआ कि उसके घर में ऐसा कुछ भी नहीं था जो वह भगवान को भेंट दे सके। इसी असमंजय में अपनी असमर्थता की पीड़ा वश करके वह अपने हाथों को मसोस रहा था। उसको परेशान देखकर स्वामी ने कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है, वह उसे कुछ देने ही आए हैं, न कि लेने। उन्हें तो केवल उसका प्रेम ही चाहिए। स्वामी ने हाथ घुमाकर कुछ मिठाइयाँ और कुछ फल सृजित किए और वहाँ उपस्थित सभी लोगों को बांट दिए। तत्पश्चात उन्होंने विभूति सृजित की और मोची के माथे पर लगा दी। जाने से पूर्व स्वामी ने कहा, अब मुझे चलना होगा, चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। इससे पहले कि मोची कुछ बोल पाता, स्वामी कार में बैठकर चले गए। स्वामी ने एक साधारण से मोची की कुटिया को मंदिर में बदल दिया था। एक बार स्वामी त्रिचिनापल्ली गए, वहाँ कुछ लोगों ने स्वामी के खिलाफ कुछ झूठी अफवाहें फैलाना शुरू कर दिया था। उसी शाम स्वामी जब एक सभा को संबोधित कर रहे थे, उन्होंने एक भिखारी लड़के को मंच पर बुलाया। वह लड़का जन्म से ही गूंगा था और वह बोल नहीं सकता था। यह बात सर्वविदित थी। स्वामी ने संपूर्ण भीड़ के समक्ष उसका नाम पूछा। लड़का, जो आज तक कभी नहीं बोला था, ऊंचे स्वर में बोला, वेंकट नारायण। अब जिन्होंने स्वामी के विषय में झूठी अफवाहें उठाई थीं, उनके सिर शर्म से झुक गए। स्वामी की महिमा अपरंपार है। एक बार तिरुवण्णामलई में स्वामी ने कुछ औषधियाँ सृजित की और स्वामी अमृतानंद को उनकी एक पुरानी बीमारी से मुक्ति दिलाई। एक अन्य अवसर पर स्वामी ने डॉक्टर भगवंतम के पुत्र का ऑपरेशन किया था। इस शल्य चिकित्सा के लिए यंत्र भी स्वामी ने स्वयं ही सृजित किए, जो कि आज भी डॉक्टर भगवंतम के पास सुरक्षित रखे हुए हैं। स्वामी के एक अन्य भक्त हैं डॉक्टर शंकर। स्वामी ने डॉक्टर शंकर के भौतिक शरीर में प्रवेश होकर कई कठिन शल्य चिकित्साएं बड़ी सफलतापूर्वक की हैं। श्री कारुण्यानंद स्वामी का आंध्र प्रदेश में एक आश्रम था। उन्होंने आश्रम के अस्पताल में स्वामी की कुछ फोटो लगाई हुई थी। एक बार एक असहाय गर्भवती महिला, जिसकी सहायता करने वाला कोई नहीं था, सहायतार्थ आश्रम में आई। स्वामी जी ने उसे आश्रम में के अस्पताल में भर्ती करा दिया। एक रात उस गर्भवती महिला को अस्पताल में अकेला छोड़कर दाइयाँ रात्रि का सिनेमा देखने चली गई। उसी रात को बेचारी महिला को भयंकर प्रसव पीड़ा होने लगी। उसकी पीड़ा और असमर्थता को देखकर स्वामी दीवार पर टंगे चित्र में से निकलकर नीचे उतर आए। उन्होंने उस महिला का उपचार किया तथा उसकी मदद की जिससे वह बच्चे को सुरक्षित जन्म दे सकी। माँ साई ने ही उस सद्यजात शिशु को स्वच्छ किया और सौम्यता से माँ के पास लिटा दिया ताकि वह उसे दूध पिला सके। जब दाइयाँ लौटी तो यह देखकर चकित रह गई कि उनका काम तो किसी और ने ही कर दिया था। जब उन्होंने उस महिला से पूछा तो उसने स्वामी की फोटो की तरफ संकेत करके बताया कि साधु माता आई थी और उसी ने उसकी मदद की। उसे कहाँ पता था कि जिस साधु माता की वह बात कर रही थी वह तो स्वयं भगवान नारायण ही थे। श्री सत्यनारायण भगवान ने पुनः इस धरा पर जन्म लिया है और हम सब की रक्षा कर रहे हैं। वे सदा ही उसकी रक्षा करेंगे जो श्रद्धा और प्रेम से उन पर विश्वास करेगा। हमारा सौभाग्य है कि आज हमें भगवान के दर्शन, स्पर्शन और संभाषण प्राप्त करने का सुअवसर मिला है। यह दुर्लभ अवसर हमें हमारे कई पूर्व जन्मों के पुण्याय के फलस्वरूप ही प्राप्त हुआ है। स्वामी का स्वभाव ही प्रेम है। वह उनकी रक्षा करते हैं जो भक्ति और धर्म के मार्ग पर चलते हैं। कुछ लोग उन्हें ईश्वर, कुछ उन्हें महाविष्णु, कुछ फादर और कुछ उन्हें अल्लाह कहते हैं। उसी तरह से श्री सत्य साई बाबा भी भगवान के भिन्न भिन्न रूपों को धारण करते हैं, क्योंकि सभी नाम उन्हीं के हैं और सभी रूप भी उन्हीं के हैं। वे अपने भक्तों पर कृपा करते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। वे कहते हैं कि मानवीय मूल्य ही हमारा जीवन है, हमारे जीवन का आधार है।
सत्य, धर्म, शांति, प्रेम और अहिंसा, इनके बिना शिक्षा खोखली है। सत्य, धर्म, शांति और प्रेम के बिना परोपकार और दानशीलता निरर्थक है। सत्य, धर्म, शांति, प्रेम और अहिंसा के बिना वे सारे क्रियाकलाप जिन्हें हम पवित्र या पावन मानते हैं सभी व्यर्थ हैं। सत्य, धर्म, शांति, प्रेम और अहिंसा सदैव स्थायी रहने वाले मानवीय मूल्य सनातन धर्म के 4 स्थायी स्तंभ हैं। सनातन भगवान सदैव हमें ईश्वर का नाम स्मरण करने की याद दिलाते हैं। वे कहते हैं कि नाम स्मरण को कभी मत छोड़ो, भगवान का नाम ही मुक्ति दिला सकता है। जो कोई भी इस पूजा को प्रेम और भक्ति के साथ करता है, भगवान श्री सत्यसाई सत्यनारायण उसे सुखी और शांतिपूर्ण जीवन का आशीर्वाद देते हैं और उनके कष्ट और चिंताओं को हर देते हैं। ओम श्री साई राम। यहीं पर श्री सत्यसाई सत्यनारायण कथा का 5वां और अंतिम अध्याय संपूर्ण हुआ। साई सत्यनारायण कथा संपूर्ण हुआ। सर्वत्र मंगलम भवतु, सर्वत्र शांतिर्भवतु। ओम श्री सत्यसाईने नमः। धूपमाघ्रापयामि, दीपं संदर्शयामि, धूपदीपानंतरम आचमनीयम समर्पयामि। धूप दीप दिखा दीजिए, आचमन समर्पित कर दीजिए। एक फल नैवेद्य स्वरूप ले लीजिए। कदली फलम निवेदयामि, उसको जल से प्रोक्षण कर दीजिए, नैवेद्य कर दीजिए। नैवेद्यानंतरम आचमनीयम समर्पयामि, एक बार आचमन कर दीजिए। भगवान के षोडश उपचार पूजा का उत्तर भाग अभी प्रारंभ करने जा रहे हैं। इनमें मंगल आरती के साथ समाप्ति होगी। साई राम। एक बार भगवान को धूप दिखा दीजिए। दशांघृत संयुक्तो दिव्य गंधै ससंयुतः धूपोऽयं गृह्यतां देव वाल्मीकपुरनायका। दोहराइए, प्लीज रिपीट। सर्वदेवतातीता स्वरूप भगवान श्री सत्यसाई बाबा परब्रह्मणे नमः। धूपमाघ्रापयामि, दीप से आरती कर दीजिए। दीन पोषक साईश दिव्य तेजो विराजिता दिव्य ज्योतिर्मयानंत दीपोऽयं प्रतिगृह्यताम्। दोहराइए, प्लीज रिपीट। सर्वदेवतातीता स्वरूप भगवान श्री सत्यसाई बाबा परब्रह्मणे नमः। दीपं संदर्शयामि, धूपदीपानंतरम आचमनीयम समर्पयामि। जल समर्पित कर दीजिए, प्लीज ऑफर वाटर। अंतिम एक फल आपके पास होगा, उसको नैवेद्य स्वरूप ही रख दीजिए। ये अंतिम नैवेद्य है भगवान को। सत्यनारायण व्रत में गेहूं के रवा का हलवा भी देते हैं। ये भी घर में जब कर रहे हैं तभी प्रसाद स्वरूप या शीरा जो भी विधिपूर्वक दे सकते हैं, परंतु यहाँ पे नैवेद्य करते हैं फल से। नैवेद्य उसको प्रोक्षण कर दीजिए, उसके पानी परिसेचन कर दीजिए। नित्य तृप्तोऽसि भगवान सत्यसाई कृपाकर नैवेद्यं गृह्यतां देव संतुष्ट्यर्थं ममानघ। दोहराइए, प्लीज रिपीट। सर्वदेवतातीता स्वरूप भगवान श्री सत्यसाई बाबा परब्रह्मणे नमः। महानैवेद्यं निवेदयामि। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। देवसवितः प्रसुवा ऋतं त्वा सत्येन परिषिञ्चामि। अमृत उपस्तरणमसि। प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, ब्रह्मणे स्वाहा। भगवान को नैवेद्य समर्पित कर दीजिए। हाथ जोड़ लीजिए, प्रार्थना कर लीजिए। जो पान सुपारी रखा है उसको स्पर्श कर लीजिए दाहिने हाथ से। प्लीज टच द बिटल लीव्स, बिटल नट विच इज केप्ट फॉर गॉड। मुक्ता चूर्ण समेतानि स्वर्णवर्णानि गृह्यतां तांबूलवल्ली वर्णानि भवार्णवतरे हरे। दोहराइए, प्लीज रिपीट। सर्वदेवतातीता स्वरूप भगवान श्री सत्यसाई बाबा परब्रह्मणे नमः। तांबूलम समर्पयामि। कर्पूर दीप नहीं है तो सादा दीप से आरती कर सकते हैं।
नित्योत्सवप्रदानन्ते नित्यानन्दनिरञ्जन नीराजयिष्ये सायी त्वां नित्यानन्दप्रदो भव। सन्ततं श्रीरस्तु समस्तमङ्गलानि भवन्तु। सर्वदेवतातीता, दोहराइए प्लीज, सर्वदेवतातीता स्वरूप भगवान श्री सत्यसाई बाबा परब्रह्मणे नमः। आनंद ज्योतिं नीराजनं समर्पयामि। आचमनीयम समर्पयामि, एक बार जल समर्पित कर दीजिए, उसका दीप का आशीर्वाद ले लीजिए। रक्षां धारयामि। अपने हाथ में पुष्प ज़्यादा मात्रा में भी ले सकते हैं, पुष्पांजलि है। उसके बाद सिर्फ नमस्कार विधि ही है, तो ज़्यादा मात्रा में भी ले सकते हैं। पुष्प ले लीजिए भगवान को समर्पित करने के लिए, अपने हाथों में रख लीजिए। अक्षता भी थोड़ा रख लीजिए। योपां पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति। चन्द्रमा वा अपां पुष्पं पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति। य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति। दोहराइए प्लीज, रिपीट। सर्वदेवतातीता स्वरूप भगवान श्री सत्यसाई बाबा परब्रह्मणे नमः। वेदोक्त मंत्र पुष्पाणि समर्पयामि। अभी सभी अपने स्थान पे खड़े रह सकते हैं। नमस्कार विधि है, 3 बार नमस्कार है, तो हर बार कुछ श्लोक है, उसके बाद नमस्कार है। हाथ में पुष्प भी रख सकते हैं, पुष्प अर्चन करके फिर नमस्कार कर सकते हैं। अक्षता रख सकते हैं, वो हम अर्पित करके नमस्कार कर सकते हैं। जगह पे प्रदक्षिण नमस्कार है, स्वप्रदक्षिण करना है और उसके बाद करना है। यू कैन ऑफर फ्लावर्स और अक्षता फॉर द नमस्कार। फर्स्ट नमस्कार इज प्रदक्षिण नमस्कार। वन हैज़ टू रिवॉल्व एट स्टैंडिंग एट द सेम प्लेस। प्रदक्षिण करते करते साथ में भी बोल सकते हैं, या प्रदक्षिण करके नमस्कार करके अर्पित कर दीजिए। 3 प्रदक्षिण करने हैं। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि तानि विनश्यन्ति प्रदक्षिण पदे पदे। नमस्करोम्यहं भक्त्या नत भक्तार्तिभञ्जन। कुरु मे सफलं जन्म करुणावरुणालयम्। अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम। तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष मां पर्तिनायक। सर्वदेवतातीता स्वरूप भगवान श्री सत्यसाई बाबा परब्रह्मणे नमः। प्रदक्षिण नमस्कारान् समर्पयामि। पुष्प अर्चित कर दीजिए, नमस्कार कर दीजिए। और 2 नमस्कार विधि भी है, तो खड़े ही रहिएगा नमस्कार करने के बाद। नमः सर्वहितार्थाय जगदानंदकारिणे साष्टांग प्रणमामीश पर्तिनाथ दयानिधे। सर्वदेवतातीता स्वरूप भगवान श्री सत्यसाई बाबा परब्रह्मणे नमः। साष्टांग नमस्कारं समर्पयामि। नमस्कार कर दीजिए। दोबारा हाथ में थोड़ा सा पुष्प अक्षता ले सकते हैं अंतिम नमस्कार के लिए। प्रार्थना नमस्कार। नमस्ते पुट्टपर्तीश, नमस्ते भक्तवत्सल, नमस्ते सर्वदेवात्मन्, नमस्ते परमेश्वर। त्वमेव गतिरस्माकं दयां कुरु मयि प्रभो। त्वमेव भगवान् बाबा दृष्टा दृष्टफलप्रदा। मनसा कर्मणा वाचा चिन्तयामि भवत्पदं। सत्यसाईश सर्वेश सद्भक्तपरिरक्षक। प्रसीद हे कृपासिन्धो, प्रसीद परमेश्वर, प्रसीद मय्यमात्मबन्धो भक्तबन्धो दयानिधे। अपराधसहस्राणि क्रियन्ते सततं मया। तानि सर्वाणि साईश क्षम्यतां त्वरया त्वया। ॐ सर्वदेवतातीता स्वरूप भगवान श्री सत्यसाई बाबा परब्रह्मणे नमः। प्रार्थना नमस्कारान् समर्पयामि। पुष्प अर्चित कर दीजिए, नमस्कार कर दीजिए। आसन ग्रहण कर लीजिए, अपने दोनों हाथ जोड़ दीजिए। मन से एक क्षमा प्रार्थना है। कोई भी हमारे में विधि में कुछ रह गया हो तो उसके लिए एक क्षमा प्रार्थना है। प्लीज़ यू कैन टेक योर सीट एंड जॉइन योर हैंड्स इन प्रेयर। फाइनल ऑफरिंग ऑफ प्रेयर जस्ट टू भगवान टू फॉरगिव अस इफ वी हैव हैड एनी शॉर्ट कमिंग्स इन द विधि ऑफ द पूजा।
परिपूर्ण करने के लिए मंत्र है, दोहराइए। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम परात् परा यत् पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। ओम श्री सत्य साई बाबा परब्रह्मणे नमः। नमस्कार कर दीजिए। ओम तत्सत् श्री नारायण तो पुरुषोत्तम गुरु तो सिद्ध बुद्ध तो स्कंद विनायक सविता पावक तो सविता पावक तो ब्रह्ममज तो यहोव शक्ति तो येषु पिता प्रभु तो रुद्र विष्णु तो राम कृष्ण तो रहीमताओ तो रहीमताओ तो वासुदेव गो विश्वरूप तो चिदानंद हरि तो अद्वितीय तो अकाल निर्भय आत्मलिंग शिव तो आत्मलिंग शिव तो आत्मलिंग शिव तो। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। शांति शांति शांति। ओम जय जगदीश हरे स्वामी सत्य साई हरे भक्त जना संरक्षक भक्त जना संरक्षक पति महेश्वरा। ओम जय जगदीश हरे शशिवदना श्रीकरा सर्व प्राणपते स्वामी सर्व प्राणपते आश्रित कल्पलतिका आश्रित कल्पलतिका आपद्बान्धवा। ओम जय जगदीश हरे माता गुरुदैवमु मरियंतयु नीवे स्वामी मरियंतयु नीवे नाद ब्रह्म जगन्नाथा नाद ब्रह्म जगन्नाथा नागेन्द्रशयना। ओम जय जगदीश हरे ओंकार रूप ओजस्वी ओ साई महादेवा सत्य साई महादेवा मंगलहारति अंदुको मंगलहारति अंदुको मंदर गिरिधारी। ओम जय जगदीश हरे नारायण नारायण ओम सत्यनारायण नारायण नारायण ओम नारायण नारायण ओम सत्यनारायण नारायण ओम सत्यनारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा नारायण नारायण ओम सत्यनारायण नारायण नारायण ओम नारायण नारायण
सद्गुरुदेवा शान्ति शान्ति शान्तिः समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की जय। परमं पवित्रं बाबा विभूतिं परमं विचित्रं लीला विभूतिं परमार्थ इष्टार्थ मोक्ष प्रदानं बाबा विभूतिम् इदमाश्रयामि परमं पवित्रं बाबा विभूतिं परमं विचित्रं लीला विभूतिं परमार्थ इष्टार्थ मोक्ष प्रदानं बाबा विभूतिम् इदमाश्रयामि परमं पवित्रं बाबा विभूतिं परमं विचित्रं लीला विभूतिं परमार्थ इष्टार्थ मोक्ष प्रदानं बाबा विभूतिम् इदमाश्रयामि बाबा विभूतिम् इदमाश्रयामि साई बाबा विभूतिम् इदमाश्रयामि